My energy. Baby, show me. I gotta see my head. I go from living to death and when it out. Stuck, I just stay there. I have a dream. That's all I need. Make it happen with somebody can believe. You know what I want. I'll take it on. I made mistakes, got mistakes, make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'll go get it. You hear me now, man. I'm on you. Yet y'all seem to be great. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in and not getting there. Ain't no point in resisting. Baby, night I could change. Baby, right, that's a thing. Every night, got a thing. I'm tied to the city. I'm on stage, here on screen. Okay, it's a dream. Ain't a play. That's just in the blood. Yeah, it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, I regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just lose it, have no shame. I live it. Looking to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? क्या बात है, सुपर। हेलो, नमस्ते सब लोग। सुपर, क्या बढ़िया। हर्षा, अबराज, हेलो देवेंद्र, हेलो रवि, अबरार, भाग्यश्री, हाय, सहबाज, हेलो। सुपर, क्या बढ़िया है। प्रियंका, हाय, हेलो हेलो हेलो। बढ़िया लगा है, सब लोग आ गए, मैच छोड़ के आ गए। आई नो टुडे इज द मैच डे और बहुत कम लोग आने वाले थे। आई न्यू इट। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, आज छठ पूजा भी है। बढ़िया बढ़िया। कहाँ है आप सबके कैमरे? कहाँ पे है सब लोग? कहाँ पे है सब लोग? ओहो, हाय आशीष, हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज जो जो लोग मिस करने वाले ना, उनके इंटरव्यूज में बहुत दिक्कत होने वाली है। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिन भर क्या मन रहेगा। बढ़िया बढ़िया। आज आज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सुपर्ब। So yes, the recording is already started because I wanted to keep this session very short and very crisp. क्योंकि आज बहुत लोग had sent an email saying that they can't attend the class. So please keep the recording on. So can you please explain about services? Yes, I will. Yes, 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 I will. Okay. Superb. एक GoPro भेज दो जरा भाई। जबरदस्त। रिकॉर्डिंग में एब्सेंट वाले कवर कर लेंगे। एग्जैक्टली। सो यस, 20 people are here. So mostly today's session was supposed to be a end-to-end project.
So end to end project ये भी करेंगे, but before that we will be doing, as many of them said कि services नहीं समझा, हर्षा को नहीं समझा, तब राज का भी services part miss हो गया था. So we'll be doing services. Also we will be doing very very important thing, which is, I'll share my screen. बहुत ही ज़्यादा important concept है, which is known as data in Kubernetes. So data in Kubernetes has basically two very important things: secrets और config maps. अब अगर मैं बोलूं कि secrets क्या है, config maps क्या है, so it's a बहुत ही आज भी लाइट नहीं है. हाँ, आज बेसिकली आई थॉट कि थोड़ा रुक ही जाते इधर. ओके, सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्रेट्स एंड कॉन्फिग मैप्स बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है. एंड द रीजन व्हाई दिस इज आस्क्ड इज वेरी वेरी सिंपल. कोई भी नहीं चाहता कि ये बेसिकली आपके क्रेडेंशियल्स एक्सपोज हो, कोई भी नहीं चाहता कि आपका डेटा एक्सपोज हो. So Ravi says, can you cover MongoDB in DevOps covers? अच्छा, basically DevOps course में MongoDB. MongoDB is basically, yeah, I can cover, but MongoDB एक अलग ही topic है. It's a database, that to NoSQL database. So I can cover AWS DynamoDB. उतना I can do, but covering MongoDB entire can be, कर सकते हैं, but maybe that 2 month के बाद we can. But शुभम भाई, रवि बात कर रहा हूँ. Ravi. I'm not full entire MongoDB, whichever like it's related to our DevOps course. Can you cover like basic how to fetch the data to the some our projects related to our projects? Okay. So I'll cover that in the project section, the Okay. third month, Okay. where we will be doing projects. So one project will be on MongoDB. Okay. Okay. Thank you. Okay then. Amazing. So let's talk about the concepts that we will be covering today. So yeah, as I mentioned that in today's session we will be covering secrets and config maps. But usse pehle I wanted to tell the concepts that we covered yesterday, which are very very important for your Kubernetes. Okay, so जिन लोगों का भी कल का मिस हो गया था, they can basically have a recap. Okay, so Kubernetes has very very simple concepts. First concept is master. Okay, master. Okay, then you have second concept as node. Okay, third concept as kubectl, fourth concept as kubelet. Okay, fifth concept as pods, sixth concept as deployment. Then comes your service. Okay, pods, deployment, service, and I think these are the seven very very important. Then there is one more concept called ingress, which we will be covering once we have covered Route 53. अभी realize हुआ कि मैं तो अंग्रेजी क्यों मार रहा हूँ. तो हमारे जो ये 8 concept है, ingress is basically जो हम लोग Route 53 AWS routing Nginx ये करने के बाद जब करेंगे तब ingress आएगा. And then comes secrets and config maps. तो अगर आपको Kubernetes में अच्छा खासा समझना है, then these are the most important concepts which you should be knowing. Just give me 1 minute. I think कुछ तो just a minute. Okay, super. So master, node, kubectl, kubelet, charger. हाँ यार, charger. I think battery I have kept. It's fine. Okay. So let's revise one by one और फटाफट revise करते हैं. So what is the master? I want everyone to give their definition of master. जो भी है, जितना भी आपने कल समझा, उसके हिसाब से just define a master.
master basically is that entity which has control panel. Okay, control panel. In the control panel, we have API server, we have controller, we have scheduler, we have etcd. Okay, and ये master basically node को point करता है और node को काम देता है. Okay, node को point करता है और काम देता है. So master is an entity जिसके पास आपका API scheduler रहता है, controller scheduler, API server रहता है basically, and etcd backups लेता है, scheduler pods को schedule कराता है, controller service रहती है, API server रहता है जो communication करता है with your node. Okay, so master में these are the control panel services which are very very important, and master is the orchestrator. जो orchestrator होता है वो बताता है कि अच्छा इस कंटेनर को ऐसे चलना है, इस कंटेनर को इतने में ऑटो स्केल होना है, ऑटो हील होना है, थिंग्स लाइक दैट. Okay, let's see what you have written. Okay, superb. Controls the pod. Amazing. So node is basically that entity or that particular server in which we have बहुत सारे pods. Okay, बहुत सारे pods running and doing the job. Okay, बहुत सारे pod जो अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. Okay, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो लोग. Okay, और फिर comes what is kubectl. kubectl is the Kubernetes controller which basically allows your master and node to communicate. और वो कैसे communicate करेगा? Through API server. तो API server master का, okay, API server master का, और node में होता है kubelet. Okay, node में होता है kubelet. Kubelet node का और API server master का, ये दोनों communicate करते हैं through a tool called kubectl. Okay, तो जितनी भी चीजें होंगी आपके ये पूरा, and the entire thing is known as Kubernetes cluster. The entire thing is known as Kubernetes cluster. Okay, तो आपका पूरा जो चीज होता है that is known as Kubernetes cluster which has master, node. Master के side there is very important thing called API server. Node के side there is an important thing called kubelet. Kubelet और API server दोनों communicate करता है using kubectl. kubectl get pods. API server पे हम लोग मारते हैं request kubectl get pods. API server बोलता है अच्छा kubelet तुम्हारे पास कितने कितने pods है उसकी definition, उसका information दे दो मुझे. That is how the communication happens. Let's see what you have seen. Main hero API है kubectl. That's correct. That's correct. Then comes kubelets. Kubelets is the agent. Kubelet ना एक agent होता है जो आपका node पे चल रहा होता है. And this can be any number of nodes. Okay, multiple nodes भी हो सकती है. Okay, there can be many nodes. Okay, multi nodes भी हो सकते हैं. So we can have kubelets, but we will have only one API server. Okay, और वही सबको manage करेगा. Now comes the pods. Pod is the smallest entity in the entire Kubernetes cluster. One pod will generally have one container running. Okay, एक pod के पास generally एक container running होता है. It can have multiple also, but it is not suggested. Suggest नहीं होता है. जितने भी तुम production के application देखोगे एक pod एक container चला रहा होता है. ठीक है? And अगर आपको बढ़ाना है तो that can be replicated. अगर आपको उस pod को replicate करना है, auto heal करना है और एक क्लस्टर में चलाना है कि 10 पॉड्स एक साथ चल रहे हैं, दैट इज नोन एज डिप्लॉयमेंट्स. डिप्लॉयमेंट क्या करता है? डिप्लॉयमेंट इज बेसिकली दैट एंटिटी व्हिच सेज दैट योर पॉड्स कैन एक्ट टुगेदर एंड दे कैन ऑटो स्केल, दे कैन ऑटो हील, दे कैन बी क्रिएटेड व्हेनेवर यू वांट, जस्ट वन कमांड अवे. सो ये डिप्लॉयमेंट्स रहता है. भैया हाउ मेनी मास्टर कैन वी हैव? ओनली वन. Only one master, many nodes. Okay, one master, many nodes. Production में see, you can have different Kubernetes clusters. Okay, आपके पास 50 Kubernetes cluster है, तो 50 Kubernetes cluster के 50 masters हो सकते हैं, but एक Kubernetes cluster का एक ही master होगा. There can't be many kubectl processes running. एक ही kubectl process जो many kubelets को जोड़ के रखता है. Okay.
Now comes the service part. So the thing is, let's understand deployment. Think of it like this is your worker or node. तो ये आपका वर्कर है जिसके अंदर बहुत सारे पॉड चल रहे हैं. तो ये सारे पॉड्स हैं. ओके, ये भी पॉड है, ये भी पॉड है, ये भी पॉड है, इतने सारे पॉड चल रहे हैं. अब ये जो पॉड्स चल रहे हैं, इन सबके बेसिकली लेट्स से ये वाला पॉड है रिएक्ट एप्लीकेशन का, ये वाला पॉड है जैंगो एप्लीकेशन का, ये वाला पॉड है माईसीक्वल डेटाबेस का. ठीक है. अब ये वाला पॉड है पाइथन का कोई तो एप्लीकेशन है, ये वाला पॉड है कोई तो जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन है. अब ये तीनों पॉड आर बेसिकली आर वन सिंगल एप्लीकेशन. इसको हमें क्लब करना है. ये जो तीनों पॉड है ये हमारा एप्लीकेशन ऐप 1 के लिए है. ऐप 1 हैज दीज पॉड्स. ये जो पाइथन और जावास्क्रिप्ट का है ये किसी और ऐप के लिए, ऐप 2 के लिए है. सो व्हाट वी हैव डन, अगर हमें एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पॉड्स है, तो उस प्रोजेक्ट को लेबल दे दो. ठीक है, उस प्रोजेक्ट को लेबल दे दो. नाउ योर लेबल बिकम्स ऐप 1 फॉर प्रोजेक्ट 1 विच हैज पॉड्स. कौन से विच हैज पॉड्स एज React, Django and MySQL. तो ये आपका एक ऐप है और एक लेबल है. You have another app called app2. Okay, you have another app called app2. Now इस ऐप के अंदर 2 पॉड्स चल रहे हैं, एक पाइथन का चल रहा है, एक जावास्क्रिप्ट का चल रहा है. ओके, 2 पॉड्स आर रनिंग. उसका लेबल क्या है? app2 is the label for this. अब ये ऐप को मुझे डिप्लॉय करना है, और जब भी मैं डिप्लॉय करना है बोलता हूं, इट मींस आई हैव टू डू अ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, विच मींस आपका ऐप कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए. आपका ऐप अगर बहुत सारा लोड आ जाए तो ऑटो स्केलिंग होने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. और बेसिकली जहां पे भी आपको लेट्स से 10 नोड्स है, आपको डायनेमिकली अलोकेट करना है कि यार इस नोड में ये वाला चल जाए, इस वाले नोड पे ये वाला चल जाए. उस चीज के लिए यू नीड अ डिप्लॉयमेंट. यू नीड अ डिप्लॉयमेंट. ओके, यू नीड अ डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट में यू हैव सिलेक्टर्स. ओके, यू हैव सिलेक्टर्स सेइंग दैट अगर आपकी डिप्लॉयमेंट है फॉर रिएक्ट, जैंगो, माईसीक्वल ऐप, तो आपका सिलेक्टर हो जाएगा ऐप 1. अब क्या हो जाएगा, ये पॉड का क्लस्टर और ये डिप्लॉयमेंट हो जाएगी बाइंड. व्हेन दिस डिप्लॉयमेंट इज बाइंड, और जब ये डिप्लॉयमेंट एकदम कपल हो जाती है, देन ओनली इट गेट्स द ऑटो स्केलिंग, ऑटो हीलिंग, सारे प्रोडक्शन वाले क्वालिटीज, सारे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन वाले जितने भी रिक्वायरमेंट होती है वो तब मिलती है जब डिप्लॉयमेंट का सिलेक्टर और लेबल आपका मैच हो जाएगा. ओके, सुपर. आपस में कुबरनेटिस क्लस्टर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कुबरनेटिस क्लस्टर. वी कैन सी दैट, बट आई हैवंट डन इट एक्चुअली, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो उसमें एक कुबरनेटिस क्लस्टर में भी हो गया था पूरा काम. बट यस, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन. ओके, सो इज थिंग्स लाइक मास्टर, नोड, kubectl, kubelets, pods and deployments clear to everyone? क्या सबको मास्टर, नोड, क्यूबलेट, kubectl, pod और डिप्लॉयमेंट ये क्लियर हो गया है? ठीक है. अभी ओके, गुड, ग्रेट. सो दिस डिप्लॉयमेंट विच इज जस्ट अ लेबल, जो बोल रहा है कि अगर मेरे पास ऐप 1 है और यहाँ पे पॉड्स के पास लेबल है ऐप 1, तो ये मेरी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी. अगर मेरे पास एक और डिप्लॉयमेंट है जिसमें ऐप 2 इज द सिलेक्टर, देन ये डिप्लॉयमेंट इस वाले डिप्लॉयमेंट के साथ, इस वाले क्लस्टर के साथ और इस वाले ग्रुप ऑफ पॉड्स के साथ बाइंड हो जाएगी. ओके, सो ये डिप्लॉयमेंट फॉर योर पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन. ओके, अब जब आपने देखा था कि लेट्स से यहाँ पे पॉड चल रहा है रिएक्ट जेएस का, माईसीक्वल का, जैंगो का, इन पॉड्स की
प्राइवेट आईपी थी. ओके, दीज पॉड्स हैड प्राइवेट आईपी. अब प्राइवेट आईपी से क्या होता है, आईपी क्या होता है, अगर आपको बेसिकली इसको कनेक्ट करना है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपीस, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी. तो जब भी ये पॉड बनता है, बेसिकली पॉड क्या होता है, डॉकर कंटेनर होता है. तो वो पॉड ना एक प्राइवेट आईपी लेके चलता है विच इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, एक्सेसिबल ही नहीं रहता है. तो आप क्या करते हो, आप एक सर्विस बनाते हो. ओके, यू क्रिएट अ सर्विस. ओके, यू क्रिएट अ सर्विस. आप सर्विस में क्या बोलते हो, सर्विस में बोलते हो कि भैया मेरे पास ना पोर्ट्स चाहिए. ओके, मुझे ना पोर्ट चाहिए. अब सर्विसेज भी अलग अलग टाइप की होती है. देयर इज वन सर्विस कॉल्ड नोड पोर्ट, देयर इज अनदर सर्विस कॉल्ड क्लस्टर आईपी, and there is another service called load balancer. Okay, and mostly सबका implementation same रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है, it's just a YAML file. Let's talk about node port. Node port क्या करता है, let's say you have this deployment and this is the node. Okay, this is the node in which your pods are running. अब ये सारे जो pods है, कोई 8001 पे चल रहा है, कोई 8002 पे चल रहा है, कोई किसी पे चल रहा है. हम हर किसी की आईपी और पोर्ट नंबर नहीं मैनेज कर सकते. ओके, वी कांट डू दैट. हम क्या करेंगे, हम एक सर्विस बनाएंगे. ये सर्विस के पास अगेन लेबल और सिलेक्टर होगा टू बाइंड विथ समथिंग, टू गेट बाउंड टू समथिंग. सर्विस, मुझे इस सर्विस को जोड़ना है अपने डिप्लॉयमेंट के साथ, मुझे इस सर्विस को जोड़ना है अपने डिप्लॉयमेंट के साथ. तो मैं डिप्लॉयमेंट को बोल देता हूं कि हे डिप्लॉयमेंट, आप ऐप 1 हो ना, तो मेरी सर्विस का जो सिलेक्टर होगा ना, वो ऐप 1 के लिए काम करेगा और उसमें पोर्ट होंगे. तो मेरा जो सर्विस होगा दैट इज ऑल्सो अ डॉकर कंटेनर. उसको, उसका काम क्या होगा, आपके अंदर जितना भी नोड के अंदर पॉड्स चल रहे हैं ना, उसको अवेलेबल करा देना बाहर की दुनिया के लिए, बाहर की दुनिया के लिए अवेलेबल करा देना. तो मैं क्या कर दूंगा, हमारा 3 टाइप के पोर्ट इसमें यूज होता है. एक इंटरनल पोर्ट जो सर्विस का इंटरनल पोर्ट रहता है, वो जनरली 80 भी रख सकते हो, 8000 भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू. देन रहता है टारगेट पोर्ट, टारगेट पोर्ट, और ये ना पोर्ट की लिस्ट रहती है. ओके, पोर्ट्स इज अ लिस्ट. तो टारगेट पोर्ट में लेट्स से यू हैव सेड कि मेरा ऐप जो है वो पोर्ट नंबर 8000 पे चल रहा है. ओके, मेरा ऐप जो है वो पोर्ट नंबर 8000 पे चल रहा है. ओके, मतलब जो आप एक्सेस तो एक ही को करोगे ना, वो इंटरनली बात करेगा हर एक चीज से, इंटरनली वो कम्युनिकेट करेगा MySQL से, Django से, बट आप एक्सेस तो एक ही ऐप को करोगे. जैसे instagram.com लिखते हो तो आप एक ही फ्रंट एंड को एक्सेस करते हो और वो बैक एंड किसी किसी को एक्सेस कर रहा होता है. सो यू हैव टारगेट पोर्ट विथ सम पोर्ट, जिससे कि आपने सर्विस को और डिप्लॉयमेंट को बाइंड कर दिया है. तो ये दिस पोर्ट इज योर इंटरनल सर्विस पोर्ट, दिस टारगेट पोर्ट इज योर डिप्लॉयमेंट का पोर्ट. तो डिप्लॉयमेंट का पोर्ट नंबर 8000 आपने बाइंड कर दिया है. और 8000 में क्या क्या बाइंड है, 8000 में आपके सारे पॉड्स बाइंड है. तो आपने सर्विस का पोर्ट 80 और डिप्लॉयमेंट का पोर्ट 8000 बाइंड कर दिया. अब ये तो सर्विस का इंटरनल पोर्ट है और डिप्लॉयमेंट का इंटरनल पोर्ट है. मुझे अब सर्विस का एक्सटर्नल पोर्ट चाहिए होगा और उसी को बोलते हैं नोड पोर्ट. ओके, उसी को बोलते हैं नोड पोर्ट. नोड पोर्ट इज अ रेंज ऑफ पोर्ट्स फ्रॉम 30,000 to 32,000. ओके, 30,000 to 32,000. इसके बीच में आप कोई भी एक नोड पोर्ट ले लो, 30001 ले लो, एंड वो क्या हो जाएगा, वो आपकी सर्विस का एक्सटर्नल पोर्ट हो जाएगा. कौन सा, 3001, 30001. इंटरनल पोर्ट 80 इज मैप टू आपका डिप्लॉयमेंट का पोर्ट 8000. एक्सटर्नल पोर्ट 3001 इज नाउ ओपन टू यूजर. अब वो यूजर देख सकता है और यूजर पूरा का पूरा क्लस्टर के साथ खेल सकता है यूजिंग दिस पोर्ट. अभी नोड का पोर्ट आपको मिला है, आईपी नहीं मिला है. तो ये जो सर्विस है, ओके, सर्विस
इसकी URL होती है, which you can get easily using minikube command. Okay, minikube get service और आपका सर्विस का नाम, सर्विस का नेम और हाइफन हाइफन URL. अगर आप ऐसे URL डालोगे तो यू विल गेट अ URL जिसको आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो. एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड विद एन एग्जाम्पल कल के सेशन में. तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स और आप आराम से उस चीज को हैंड्स ऑन कर सकते हो. सर्विस इंटरनल 80 इज मैप टू कंटेनर पोर्ट एंड 3000 एंडपॉइंट पोर्ट. करेक्ट करके भी हो जाता है. हाँ, मिनीक्यूब डिस्क्राइब सर्विस करके यू कैन गेट ऑल ऑफ द सर्विसेज एंड यू उसमें से ढूंढना पड़ता है. और आप अगर करोगे मिनी क्यूब सर्विस, सर्विस का नेम हाइफन हाइफन URL, तो आपको एग्जैक्टली URL ही मिलेगी, एक्स्ट्रा सामान नहीं मिलेगा. जितने नोड्स है उतने ही डिप्लॉयमेंट फाइल्स रहेगी. क्या जरूरी नहीं आप एक ही डिप्लॉयमेंट फाइल में भी पूरा कर सकते हो. आपका लेबल्स और सिलेक्टर्स इंपॉर्टेंट. आपने एक ही डिप्लॉयमेंट फाइल बनाई, उसमें आपने 5 लेबल्स बनाए, इसका मतलब है आपके पास 5 ऐप है. एक ऐप एक लेबल. ओके, so I hope everyone is now clear with what is service. Okay, सब किसी को सर्विस समझ में आया? सर्विस क्या करता है? आपके डिप्लॉयमेंट को थोड़ा एक्सेसिबल बना देता है. ओके, जैसे आपने डॉकर स्वॉर्म में सर्विस देखा था ना, आपके सारे कंटेनर्स को एक नेम दे देता है और ये हो गया वो, तो वो सर्विस बन जाता है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ? यहां तक कुबरनेटिस किस किस का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? जस्ट लेट मी नो. व्हाट अबाउट अदर्स? कौन सा वाला पार्ट नहीं हुआ? कौन सा वाला पार्ट इज नॉट गेटिंग क्लियर, या फिर उसमें दिक्कत आ रही है, या ये कुछ तो एक्स्ट्रा है? ओके ओके, अभी लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग. वन सर्विस यूज्ड फॉर ऑल द एप्स, राइट? यस, हर एक ऐप की सर्विस अलग होगी. वन सर्विस इज यूज्ड फॉर वन डिप्लॉयमेंट. इफ देयर आर 5 डिप्लॉयमेंट्स यू विल हैव 5 सर्विसेज. ओके, फॉर एग्जांपल MySQL की सर्विस अलग और इसकी अलग. सो इफ देयर आर, हाँ, सर्विस और डिप्लॉयमेंट्स का लिंक होता है. एग्जैक्टली, सर्विस और डिप्लॉयमेंट इज लिंक्ड. एवरी डिप्लॉयमेंट हैज अ सर्विस. सो सर्विस इज ऑलवेज फॉर अ डिप्लॉयमेंट. एग्जैक्टली, अगर आप एक डिप्लॉयमेंट बना रहे हो and you're not creating a service for it, that deployment won't be accessible. How to create 100 pod at once? Replica is equal to 100. You can create one deployment file, उसमें 100 pods का वो बना दो. Cluster IP load समय भैया अलग से बनती फाइल्स की सब साथ में डिफाइन. So these are different types. जैसे अभी हमारा जो एप्लीकेशन है, it is just one single application. तो आपको एक नोड पोर्ट दे दो, उससे भी काम हो जाता है. Let's say you have multiple applications running, जिसको आपको पूरे के पूरे एप्लीकेशन को एक IP देनी है, तो that is cluster IP. And सबका तरीका it's very very similar, just a YAML file. But I guess production में we don't use node port. Production में I have used node port. That's why I have taught you node port. Load balancer is basically, अब वो Kubernetes load balancer versus Elastic load balancer versus Nginx load balancer, अलग 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 टाइप के load balancer होता है. YAML फाइल में टाइप के या नोड क्लस्टर लोड बैलेंसर डालना होता है ना. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. इफ यू वांट यू कैन गो हियर, यू कैन डायरेक्टली राइट सर्विस Kubernetes. ओके, एंड यहाँ पे जाके यू कैन डायरेक्टली फाइंड लोड बैलेंसर. ओके, एंड लोड बैलेंसर में यू कैन डायरेक्टली, यू कैन सी हियर, आपको TCP प्रोटोकॉल दिया, पोर्ट दिया, टारगेट पोर्ट दिया और क्लस्टर की IP दे दी, बस. दैट्स ऑल. कुछ ऐसे अलग सा लोड बैलेंसिंग नहीं करता वो. ओके, कुछ अलग लोड बैलेंसिंग नहीं करता वो. ओके, सो व्हाट इफ एन इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन व्हिच सर्विस हैव यू यूज्ड, वी कैन से नोडपोड इन प्रोडक्शन. आई हैव यूज्ड नोडपोड इन प्रोडक्शन, तो मैं तो बताता हूँ, क्योंकि see what we can do is we can do endless things in this world.
बट आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या किया है? क्या आपने प्रोडक्शन पे नोटपुट यूज किया है? तो आई कैन से यस, मैंने किया हुआ है। क्या आपने प्रोडक्शन पे क्लस्टर आईपी यूज किया है? आई कैन से यस, मैंने किया हुआ है, अगर मैंने किया है तो। सो एग्जाम्पल कल दिया हुआ था ना, कल का वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एन एग्जाम्पल विथ नोटपुट। ओके, अब चेक कर लेना, इट्स वेरी वेरी इजी, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, हार्डली वी टुक 20 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, इतना आसान था। वी जस्ट रोट टाइप नोटपुट, अपना इंटरनल पोर्ट मैप्ड विथ योर टारगेट पोर्ट, और बस एक नोट पोर्ट का एक वो दे दिया, पोर्ट नंबर दे दिया, एंड दैट वाज इट। ओके, मुझसे पूछा था उन्होंने, क्यों लोड बैलेंसर एंड व्हाई नॉट नोट पोर्ट? एवरीथिंग हैज देयर ओन। देखो मैंने क्या बताया था, नोट पोर्ट कब यूज करोगे? व्हेन यू नो दैट आपके पास एक ही टारगेट पोर्ट है एंड यू हैव वन सिंगल एप्लीकेशन जिसको आपको एक नोट पोर्ट पे आपको बेसिकली एक्सपोज करना है। if you're going for load balancer, you should have multiple applications running. आपका एक डेटाबेस का एप्लीकेशन भी चलना होना चाहिए, आपका एक फ्रंट एंड भी चल रहा होना चाहिए, आप ये जिसके वजह से आप पूरा का पूरा आईपी दे देते हो। ठीक है, सो इन आर केस, जैसे मैं बैकएंड में काम करता हूँ माइक्रो सर्विसेज, तो उस केस में आई नीड अ नोट पोर्ट एंड उस पर मेरा काम हो जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड नोट पोर्ट ओनली। ओके, now let's move to our next topic, which is secrets and config maps. ये इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए आपसे पूछा जाएगा कि चलो डिप्लॉयमेंट बताओ, ये वो बताओ, बट दे विल आस्क यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ डिड यू मैनेज योर सीक्रेट्स, योर क्रेडेंशियल्स, योर कॉन्फिग्स। ओके, कॉन्फिग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओके, कॉन्फिग के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास एक एप्लीकेशन है, ओके, यू हैव वन एप्लीकेशन जिसमें यू बेसिकली आप डेवलपर हो और आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें गेम खेल रहे हो आप। ओके, गेम खेल रहे हो एंड उस गेम में लेवल्स है। ओके, गेम में लेवल्स है, लेट्स से 12। गेम में जो लेवल नंबर 1 है उसका नाम है, लेवल 1 का नाम है हेलो, और लेवल 12 का नाम है एंड। ओके, एंड, और ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। ओके, ये आपका कुछ तो की वैल्यू पेयर में डेटा है। ओके, दिस इज योर डेटा। अच्छा, अब ये डेटा अगर मैं अपने कोड में रखूंगा, विच मीन्स आई हैव वन फाइल जिसमें मैं पूरा डेटा भरे जा रहा हूं एंड वो मैं हर एक पॉड पे, अच्छा मैं बताता हूँ इसका लॉजिक बताता हूँ। लेट्स से दिस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट आई एम क्रिएटिंग अ गेम जिसके अंदर 12 लेवल्स है, लेवल 1 का नाम हेलो है, लेवल 12 का नाम एंड है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ डेटा की एंड वैल्यू पेयर। ओके, इसका ये भी हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, यूजर नेम लेट्स से शुभम। ओके, यूजर नेम आपका शुभम है। ओके, डन। How many of you are understanding that this is a key value pair data? Just tell me in the chat. Okay, what is key value pair? What is your name? My name is Shubham. Name is the key, value is Shubham. What is your age? My age is 26. Age is the key, value is 26. So this is known as key value pair. Okay, clear. Now these type of variables अगर आपको एक फाइल में डालनी है, लेट्स से data.txt, आपको data.txt में डालनी है। एक data.txt की जो साइज है वो है लेट्स से 1 MB, समझ लो, ऐसे अज्यूम कर लो 1 MB की साइज है। अब ये तो इज इट कॉन्फिडेंशियल डेटा? क्या ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि गेम में 12 लेवल है? या मैं तो सामने लिखा हूं ना, लेवल 1 का नाम हेलो है, मेरे गेम का नाम है हाय। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ठीक है, हाय ट्रेन विद शुभम, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो ये जो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो मैं
क्या डेटा डॉट टीएक्सटी करके गिटहब पे डाल सकता हूँ? जस्ट अ डेटा, मैं इसको गिटहब पे डाल सकता हूँ, करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज करेक्ट कि मैं, मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा है नहीं, मुझे डेटा स्टोर करके रखना है, डेटाबेस यूज नहीं करना है, क्योंकि वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को क्यों डेटाबेस यूज करूंगा? आई कैन डायरेक्टली पुट इट ऑन अ फाइल एंड पुट इट ऑन गिटहब। इसका डिसएडवांटेज देखो, ये फाइल है 1 MB की, दिस फाइल इज 1 MB। आई हैव क्रिएटेड वन पॉड, I have created one pod which has this file। क्यों? क्योंकि मैंने इमेज बनाई ना, इमेज जब बना, इमेज के साथ ये भी आया, कंटेनर जब बना उसके अंदर ये भी फाइल आया, क्योंकि गिटहब से उठाया था ना मैंने। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग टू दिस कि मैंने इसको पार्ट ऑफ द कंटेनर डाला था? सो पॉड के अंदर डेटा डॉट टीएक्सटी इज देयर। व्हाट इफ आई हैव 100 पॉड्स, मेरा टोटल साइज कितना हो जाएगा? 100 MB। इज इट अ गुड थिंग? क्योंकि मैं सिर्फ सेम डेटा हर जगह रेप्लिकेट करा रहा हूं, मेरा एप्लीकेशन हर जगह रेप्लिकेट हो रहा है, इज फाइन, क्योंकि वो एप्लीकेशन तो चलना ही चाहिए। ये तो सिर्फ सेम डेटा हर जगह रेप्लिकेट हो रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉन्फिग फाइल बना सकते हैं। ओके, वी कैन मेक अ वन कॉन्फिग फाइल, ओके, सिंगल कॉन्फिग फाइल, जिसको आप एक लेबल दे दो कि भैया ये ऐप 1 की कॉन्फिग फाइल है, और ऐसे 100 क्या 1000 पॉड्स भी होंगे ना, छोटे छोटे, एक डिप्लॉयमेंट होगी जिसका लेबल होगा app1। आप क्या बोल दो, ये कॉन्फिग app1 के साथ बाइंड है। तो ये कॉन्फिग अगर 1 MB की है और आपके पास 10 लाख पॉड्स भी बने, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो डेटा होगा उसका साइज कितना होगा? 1 MB। दैट इज द रीजन व्हाई हर कोई इन योर इंडस्ट्री वांट्स यू कि आपको कॉन्फ़िग आता हो, आपको सीक्रेट मैनेजर आता हो, आपको ये सारी चीजें आती हो। मोटिवेशन समझ में आया कि क्यों पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक कॉन्फ़िग मैप्स इन कुबरनेटिस, से कि एक ही कॉन्फ़िग आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन के लिए चल जाए। गॉट इट? यस। अभी कम्स द पार्ट जहां पे हमें वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्फ़िग मैप। तो जब भी आप क्रिएट करते हो कॉन्फ़िग मैप, कौन से टाइप की फाइल बनेगी, कोई बता सकता है? पॉड बनाते हो तो कौन सी टाइप की फाइल बनती है, डिप्लॉयमेंट बनाते हो कौन सी टाइप की फाइल बनती है, सर्विस बनाते हो तो क्या बनती है? YAML फाइल। सो यू हैव टू गो इन योर, कम हियर, ओके, आप अपने क्लस्टर में जाओ, cd DevOps mkdir config k8, config k8 कर रहे हो आप, cd config k8। अब यहां पे आपको क्या बनाना है? vim config map.yaml। आपको एक config मैप बनाना है, ठीक है, आपको एक config मैप बनाना है। अगेन config मैप का जो स्ट्रक्चर होता है YAML का, वो वी कैन डायरेक्टली गेट फ्रॉम योर मेन Kubernetes। सो config मैप Kubernetes, आप यहां जाओगे, देखो थोड़ा सा पढ़ लेना जब भी आपको ऐसे लगे कि व्हाट आई एम डूइंग, मैंने क्यों गूगल सर्च किया। जो मैंने बोला ना, इट्स सेम थिंग रिटन अगेन बेटर इंग्लिश में। So a config map is an API object used to store non-confidential data in key value pairs. Very simple. ठीक है? अब pods can consume config maps as environment variables, command line argument और configuration files in a volume। इसका मतलब क्या है? आपके जो pods होते हैं ना, इनको ये पूरा का पूरा config map मिल सकता है। अगर आपके 10 लाख pods है, एक कॉन्फ़िग मैप भी उन सब पॉड्स तक पहुंचाई जा सकती है। और इससे ये क्यों होती है? तो कॉन्फ़िग मैप अलाउज यू टू डीकपल इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट आपका एप्लीकेशन ना कहीं पे भी जा सकता है। लेट्स से आपकी कॉन्फ़िग में एक URL है जिसको आपने दिया हुआ है test.trainwithshubham.com।
तो मैं जानता हूँ कि जो URL है वो मेरी टेस्टिंग वेबसाइट की है। trainwithshubham.com इज माई प्रोडक्शन वेबसाइट, तो वो प्रोडक्शन के कॉन्फिग मैप में होगी। तो मैं जब भी टेस्ट पॉड चला रहा हूँ ना, तो मैं उसको टेस्ट कॉन्फिग ऐप लेबल से मैच करा दूंगा। जब भी मैं प्रोडक्शन वाला पॉड चला रहा हूँ तो प्रोडक्शन पॉड के ऐप लेबल और कॉन्फिग मैप प्रोडक्शन वाली को मैच करा दूंगा। इससे मेरा जो एप्लीकेशन है ना वो एक ही रहेगा, मेरा एप्लीकेशन एक ही रहेगा, बट वो अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से चलेगा, बिकॉज उसका वेरिएबल्स अलग अलग है। किस किस को ये समझ में आया कि मैं एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग इन्वायरमेंट में चला सकता हूं यूजिंग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ओके अभी कॉन्फिग मैप का ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है? let's try to create one. okay so very simple, आपका जो ये रहता है ना, ये जो वेरिएबल्स रहता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये आपका डेटा है। ओके एनीथिंग विच इज इन अ की वैल्यू फॉर्म, जिसमें आप कोई टाइप का वैल्यू दे रहे हो, दैट इज योर डेटा। इज इट कॉन्फिडेंशियल डेटा और नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा, ये आपके ऊपर डिसाइड है कि अगर आप चाहते हो, आपका ऐप का नाम है ट्रेन विद शुभम, क्या आपको आपके ऐप का नाम ही कॉन्फिडेंशियल रखना है? तो आपको उसको कॉन्फिग मैप में नहीं डालना चाहिए, आपको उसको कहीं और डालना चाहिए, सीक्रेट्स में डालना चाहिए, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बट कॉन्फिग मैप में आपको क्या डालना, जो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा कम्स हियर। अब API वर्जन V1, ठीक है, तो मेरा जब कॉन्फिग मैप बनाऊंगा मैं API वर्जन V1 बनाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। काइंड, मैं किस टाइप का एक YAML फाइल बना रहा हूं, मैं कॉन्फिग मैप बना रहा हूं, ठीक है, मैं कॉन्फिग मैप बना रहा हूं, बन गया मेरा कॉन्फिग मैप। ओके मेरा माय कॉन्फिग मैप इज डन। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरा मेटा डेटा, मतलब ये जो कॉन्फिग मैप का जो नाम है, उसका नाम होना चाहिए गेम डेमो। ठीक है, मैं इसका नाम डालता हूं गेम डेमो। ओके ये आप कुछ भी डाल सकते हो, आप इसका नाम ये भी डाल सकते हो, डेवऑप्स डेमो भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। आपका कॉन्फिग मैप है आपका, आप चाहो तो ये भी डाल सकते हो, डेवऑप्स डेमो टेस्ट, तो ये टेस्ट एनवायरनमेंट की कॉन्फिग मैप हो जाएगी। डेवऑप्स डेमो डेव, तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की कॉन्फिग मैप हो जाएगी। डेवऑप्स डेमो प्रोड, तो ये प्रोडक्शन की कॉन्फिग मैप हो जाएगी। तो ऐसे आप मल्टीपल कॉन्फिग मैप भी बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट, आपको जो एक्चुअल डेटा हर एक पॉड तक पहुंचाना है वो आपको यहां लिखना। सो नेक्स्ट इज योर डेटा विच यू हैव टू सेंड टू ऑल ऑफ द पॉड्स, सारे पॉड्स तक ये डेटा पहुंचाना है। ठीक है, ये पहुंचा दो डेटा। प्लेयर इनिशियल लाइव्स, ये कुछ तो है। ओके आप इसमें वैल्यू 3 डाल दो, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। लेवल्स, आप इसमें वैल्यू डाल दो 12, ठीक है, मेरी 12 लेवल है। नेक्स्ट UI प्रॉपर्टी फाइल नेम, आपकी कोई तो प्रॉपर्टी की फाइल नेम है। ओके तो कोई प्रॉपर्टी की फाइल नेम है तो आपको फाइल नेम ही तो है, तो आप इसमें डाल दो UI प्रॉपर्टीज फाइल नेम की जगह आप डाल दो लेवल प्रॉपर्टी फाइल नेम। ओके फाइल नेम ही तो है, मतलब इट्स जस्ट अ की वैल्यू पेयर वेरिएबल है। आप इसको नाम lol.txt भी डाल सकते हो या फिर lol.properties। ओके कुछ भी डाल सकते हो, इट्स बेसिकली अप टू यू। ओके नाउ फाइल लाइक कीज, अब ये फाइल लाइक कीज क्या होती है? जब भी आप में बीच में डॉट आता है ना, वो फाइल होती है। जैसे hello.py, hello.py किस टाइप की फाइल होगी, कोई मुझे बता सकता है क्या? hello.py पाइथन फाइल, करेक्ट। तो जो भी फाइल लाइक कीज होती है वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है, और जो प्रॉपर्टी लाइक कीज होती है वो की वैल्यू से रिप्रेजेंट होती है। तो मुझे एक फाइल लाइक की बनानी है जिसका नाम है game.properties, तो मैं बना दूंगा। अगर मुझे बनानी है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा फाइल लाइक की लेवल डॉट प्रॉपर्टीज। ओके लेवल डॉट प्रॉपर्टीज।
अब ये मेरी लेवल डॉट प्रॉपर्टीज अपने लेवल की डेटा है, बेसिकली डेटा है और कुछ नहीं है। अब डेटा कैसा है? ऐसा डेटा है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती है। ये जो पाइप होता है ना, पाइप इज लाइक अ लिस्ट। ओके, आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो, नॉट अ लिस्ट एग्जैक्टली, इट्स काइंड ऑफ अ डिक्शनरी जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें बता रहे हो एनिमी के टाइप्स क्या क्या है, एलियंस है और मॉन्स्टर्स है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो लेवल डॉट टाइप्स इज इक्वल टू इजी, मीडियम और हार्ड, ऐसे आप डाल सकते हो। ओके, इजी, मीडियम, हार्ड। अच्छा, इन लोगों ने ये विदाउट कोड्स डाला, तो यू कैन स्किप द कोड्स एज वेल। ये उसको स्ट्रिंग ही लेगा। ओके, बिकॉज इट्स अ वैल्यू, ये की अलग है, इट्स अ वैल्यू। सो लेवल डॉट टाइप्स इजी, मीडियम, हार्ड। ओके, नाउ उसके बाद क्या किया, प्लेयर डॉट मैक्सिमम लाइफ 5, तो आप इसमें लेवल डॉट मैक्स कर दो। जैसे ये प्लेयर डॉट मैक्सिमम लाइफ 5, तो आप लेवल डॉट मैक्सिमम लेवल 12। ओके, लेवल डॉट मैक्सिमम लेवल यू हैव केप्ट 12। एंड इसी के साथ आप दो टाइप का डेटा बनाना सीख गए, एक की वैल्यू वाला डेटा और एक फाइल लाइक की वैल्यू वाला डेटा। दोनों सेम ही होता है, कुछ फर्क नहीं होता, बस थोड़ा दिखने में अलग रहता है। ओके, ये इन्होंने अलग बनाया है, मतलब ऐसा आप 10 भी बना सकते हो, इन लोगों ने 2 बनाए, विच इज फाइन। ओके, ये सबको समझ में आया कि आपका डेटा किस किस टाइप का हो सकता है। एक डायरेक्टली की वैल्यू वाला डेटा हो सकता है, या फिर फाइल टाइप की वैल्यू वाला हो सकता है। अब इसका मतलब क्या पता है, लेवल डॉट प्रॉपर्टीज नाम की एक फाइल बनेगी, उस फाइल के अंदर क्या क्या डेटा होगा, लेवल डॉट टाइप्स होगा, इजी, मीडियम, हार्ड, लेवल डॉट मैक्सिमम लेवल होगा 12। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। इसमें एक फाइल बनेगी, उस फाइल के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। गेटिंग इट? कितने टाइप का डेटा होता है? यस एवरीवन, आर यू गेटिंग इट कि कितने टाइप का डेटा हो जाता है जो आप बेसिकली पब्लिश कर सकते हो किसी भी पॉड पे। ओके, ये कीवर्ड्स मॉडिफाई हो सकते हैं, आराम से हो सकता है। दिस इज योर फाइल, योर हैंड, योर कीबोर्ड, यू कैन मॉडिफाई इट जितना चाहो। वेरी गुड क्वेश्चन वैसे प्रियंका। अगर आपने बोला इम्यूटेबल इज इक्वल टू ट्रू, अब ये मॉडिफाई नहीं हो सकते। ओके, अब ये मॉडिफाई नहीं हो सकते। इम्यूटेबल मींस कांट बी चेंज्ड, बट बाय डिफॉल्ट इट इज इम्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो। एस्केप कोलन WQ एंटर, कॉन्फिग मैप बन गया। कॉन्फिग मैप, आप कोई भी मैप बना दो, कोई भी YAML फाइल बना दो, जब तक आप उसको एक्सपोज या फिर अप्लाई नहीं करोगे अपने कुबरनेटिस क्लस्टर पे, नहीं फायदा होगा। kubectl अप्लाई -f। अच्छा, एक चीज होती है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, व्हेन टू यूज kubectl अप्लाई, व्हेन टू यूज kubectl क्रिएट। क्रिएट पहली बार के लिए होता है, क्रिएट इज यूज टू क्रिएट दैट YAML फाइल से मास्टर नोड वर्कर नोड पे भेजता है कि भाई ये कर दो, क्रिएट। अप्लाई से क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। अप्लाई से अपडेट हो जाता है, और अगर क्रिएटेड नहीं होगा तो क्रिएट भी हो जाएगा। सो मैं जनरली बहुत ही आलसी आदमी हूँ, सो आई ऑलवेज यूज अप्लाई। इससे क्रिएट नहीं हुआ है तो कॉन्फिग मैप क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे अपडेट करना है कि लेट्स से मैक्सिमम लेवल को 12 की जगह 13 करना है, तो अप्लाई जब मैं करूंगा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, मतलब अपडेट हो जाएगा। तो एक ही कमांड से 2 निशाने। गॉट द डिफरेंस बिटवीन क्रिएट एंड अप्लाई? अब जब अगर मैं इसकी जगह क्रिएट कर देता तो पहली बार क्रिएट हो जाता, अगर मैं kubectl क्रिएट करता फिर से तो गड़बड़ हो जाता। ओके, दैट्स व्हाई अप्लाई इज गुड ऑप्शन। ओके, सो kubectl
गेट कॉन्फिग मैप, तो मेरा डेवऑप्स डेमो आ चुका है। व्हाट इज डेटा 3? इट मींस इसके पास 3 वेरिएबल है। गॉट इट? डेवऑप्स डेटा 3 इसके पास 3 वेरिएबल है। ओके, अब ये इसका जो कॉन्फिग मैप है ना, इसका नाम है कुछ, तो क्या है? डेवऑप्स डेमो। अगर मुझे पॉड्स बनाने हैं और उन पॉड को डेवऑप्स डेमो देना है, तो मैं कॉन्फिग नेम के लेबल में क्या दूंगा? कोई मुझे बता सकता है? अगर मुझे पॉड 50 बना दिए, उस पॉड्स के लेबल में मैं क्या दूंगा, क्या नाम दूंगा, अगर मुझे ये कॉन्फिग उन तक पहुंचानी है? अच्छा, क्यूब रूट सीआरटी इनिशियली बनता है। रिएक्ट टू डू नहीं दूंगा मैं। रिएक्ट टू डू क्यों दूंगा मैं? इसका नाम डेवऑप्स डेमो है ना, तो मैं डेवऑप्स डेमो दे दूंगा। v1 भी नहीं दूंगा। सी, मेटा डेटा का जो नेम है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आपको कॉन्फिग मैप का जो नेम है ना, वो देना होता है। ओके, मैं एग्जांपल के साथ बता दूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एक पॉड बनाता है, ठीक है, एक पॉड बनाता है सिंपल सा। एल्पाइन, एल्पाइन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है एल्पाइन क्या होता है? व्हाट इज एल्पाइन? एल्पाइन इज बेसिकली अ डेवऑप्स, बेसिकली डॉकर इमेज रहती है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ठीक है, लिनक्स का। वेरी वेरी गुड। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल सा पॉड बना रहा हूं। ओके, वेरी वेरी सिंपल सा पॉड, जिसके अंदर मैं अपना डेटा दूंगा। कहां से? अपने कॉन्फिग मैप से डेटा दूंगा। ठीक है, चलो डेटा दे देता है। सो पॉड बनाता है, सो विम डेवऑप्स डेमो पॉड डॉट yml। ओके, इसमें मुझे क्या करना है? मुझे एक पॉड बनाना है जिसमें मैं कॉन्फिग डेमो पॉड बनाऊंगा। ओके, सिंपल सा, सेम। अगर मैं पॉड बनाना चाहता हूँ, YAML फाइल पूरी सेम रहेगी, बस काइंड इज इक्वल टू पॉड, और मेटा डेटा का नाम हो जाएगा कॉन्फिग मैप डेमो पॉड। ये आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट आप उसका नाम डाल सकते हो। ओके, दिस इज जस्ट अ पॉड। ओके, जस्ट अ पॉड। तो आप कॉन्फिग मैप डेमो पॉड डाल दो या डेवऑप्स डेमो पॉड डाल दो। चलो डेवऑप्स डेमो पॉड डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्फिग मैप का नाम डेवऑप्स डेमो दिया था, तो डेवऑप्स डेमो पॉड डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका स्पेक। ओके, स्पेक में क्या आता है? आपका कंटेनर आ जाता है। तो कंटेनर में आप एक एल्पाइन बना रहे हो जिसमें आपने कुछ तो कमांड डाली हुई है। कैन वी क्रिएट वेयर जेसन फाइल? नो, YAML है ना, इट्स अ YAML फाइल। ओके, सो वी हैव अ स्पेक जिसमें वी हैव क्रिएटेड अ कंटेनर कॉल्ड, जिसका नाम डेमो है। कुछ भी नाम डाल दो आप इसका नाम डेमो डॉकर कंटेनर, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन कीप। इमेज एल्पाइन है, मतलब एक एल्पाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चल रहा होगा। कमांड स्लीप, या आप कमांड कुछ भी डाल सकते हो, इको हाई भी डाल सकते हो, वो चल जाएगा। ओके, अब आप चाहते हो इसके एनवायरमेंट वेरिएबल्स में कुछ वेरिएबल्स आए जब भी ये पॉड क्रिएट होगा। दिस इज CMD ऑफ डॉकर। एग्जैक्टली, दिस इज लाइक अ CMD फॉर डॉकर। ओके, तो इमेज एल्पाइन, उसका जब कंटेनर बनेगा उसमें ये कमांड रन हो जाएगी। ओके, अब एनवायरमेंट वेरिएबल्स आप बना रहे हो, ठीक है, आप एनवायरमेंट वेरिएबल बना रहे हो जिसमें आपका एक एनवायरमेंट वेरिएबल है नेम। ओके, और जिसकी वैल्यू आप कहां से ले रहे हो? आप ले रहे हो कहां से? आपके कॉन्फिग मैप से। तो आप यहाँ पे बना दो एक एनवायरमेंट वेरिएबल। ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप कहां से लोगे? ओके, आप लो, ये ENV किसका ENV है? आपके कंटेनर का ENV है। आपका जो पॉड है, पॉड के अंदर क्या रन होने वाला है? ओके, पॉड के अंदर रन होने वाला है कंटेनर। आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव मी सम आंसर। ठीक है, किस चीज का कंटेनर बना रहे हैं? ओके, विच इज द इमेज दैट वी आर यूजिंग? ओके, करेक्ट, अल्पाइन। उसके एनवायरमेंट वेरिएबल्स में हमें क्या डालना है? एक नेम डालना है। ठीक है, एक एनवायरमेंट वेरिएबल जिसका नाम है। ठीक है, तो नेम। ओके,
जिसका नेम है हमारा, लेट्स इसको सेव कर लेते हैं, एस्केप कोलन WQ एंटर, और एक बार फटाक से अपना कॉन्फिग मैप देख लेते हैं। लेवल्स, ठीक है, लेवल्स है और लेवल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो लेवल्स है और लेवल्स की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे नेम में आ जाएगा, नेम की जगह आप डाल दो लेवल्स, और उसका वेरिएबल का नाम हो जाएगा लेवल्स। ओके, सिंपल। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपका एनवायरनमेंट का नेम होगा वो दैट विल बी लेवल्स। ओके, और उसकी जो वैल्यू है वो जो आएगी ना 12, वो कहाँ से आनी चाहिए? दैट वैल्यू ऑफ लेवल्स 12 शुड कम फ्रॉम योर कॉन्फिग मैप, ठीक है, शुड कम फ्रॉम योर कॉन्फिग मैप। सो मैं वैल्यू फ्रॉम यूज कर लूंगा, वैल्यू फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कॉन्फिग मैप रेफरेंस। ओके, फ्रॉम कॉन्फिग मैप रेफरेंस। कॉन्फिग मैप का नाम क्या है? कॉन्फिग मैप का नाम क्या है? डेवऑप्स डेमो, थैंक यू, करेक्ट, ये सही है, डेवऑप्स डेमो। और कॉन्फिग मैप में जो की है उसका नाम क्या है? कॉन्फिग मैप में जो की है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी लेवल्स था, तो लेवल्स हो गया, ठीक है। दिस इज द पॉड आई हैव क्रिएटेड, जो मेरा कॉन्फिग मैप से एक वेरिएबल लेगा जिसका नाम होगा लेवल्स, और वो वेरिएबल जब भी मैं एक्सेस करने वाला हूँ आ जाएगा, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। तो एस्केप कोलन WQ एंटर, kubectl apply -f DevOps demo pod.yaml pod DevOps demo created। तो मतलब आपका जो पॉड है वो क्रिएट हो चुका है, क्रिएट हुआ है, बट किस चीज के साथ क्रिएट हुआ है? एक कॉन्फिग के वेरिएबल के साथ क्रिएट हुआ है। सो kubectl get pods running, ओके, kubectl get pods running मतलब आपका पॉड चल रहा है। मुझे इस पॉड के अंदर जाना है और बेसिकली अपना जो वेरिएबल है उसको चेक करना है। सो kubectl exec, जैसे डॉकर exec IT होता है ना, kubectl exec IT भी होता है। तो exec -interactive terminal फॉर माय डेमो पॉड, और मैं इसमें बैश यूज कर लूंगा, मैं bin sh, जस्ट अ मिनट, kubectl exec कमांड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू राइट एन exec कमांड। ये सब कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये देखो ऐसे रहता है exec, ये -, bin bash। ओके, तो -, bin bash खुल गया। बेसिकली हाइफन के बाद स्पेस होता है। ओके, अब अगर मैं इसमें प्रिंट env करता हूं, अच्छा प्रिंट env मैंने कल बताया था, व्हाट डज दैट डू? कोई मुझे बता सकता है प्रिंट env क्या बोलता है? प्रिंट env किसने लिनक्स वेरिएबल्स बताता है? एंटर करूंगा, ढूंढो, लेवल्स 12 आ गया, सबको लेवल्स 12 मिल गया। गेटिंग इट कि लेवल्स 12 कहां से आया? कि कॉन्फिग मैप का रेफरेंस लेके आपने पॉड में वो सारे वेरिएबल्स भेज दिए। गेटिंग इट? ओनली env will also do the same, env। okay, so I knew print env, so you can directly do levels, अच्छा, so echo $levels 12 आ गया। kubectl exec नहीं समझ आया, क्यों रन किया? क्योंकि मुझे उस पॉड के अंदर घुस के देखना था कि मेरा एनवायरमेंट वेरिएबल उधर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। गेटिंग इट? देखो, डॉकर exec IT क्या करता है? डॉकर exec IT क्या करता है? आपके डॉकर कंटेनर के अंदर घुसता है,
kubectl exec id क्या करता है, अपने पॉड के अंदर घुसता है। और पॉड के अंदर हम लोग क्यों घुसे, जस्ट टू कंफर्म कि मेरा जो लेवल्स, ये जो वेरिएबल था, तो उसके लिए हम मिनी क्यूब एसएसएच कर सकते थे। हाँ, मैं क्या चाहता हूं, मैं हर एक क्लास में आपको न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं मिनी क्यूब एसएसएच करके, डॉकर पीएस करके, ये मेरा अल्पाइन का जो कंटेनर है, मैं कर सकता था। डॉकर exec it कंटेनर नेम sh कर सकता था मैं। वी कैन डू बोथ वेज। मैं क्या चाहता हूं, हर एक सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिले। लास्ट सेशन में मैंने kubectl exec नहीं पढ़ाया था, इसमें पढ़ा दिया। ओके, अब यहाँ पे आप कर सकते हो echo $levels, 12 मिल गया। ओके, यू गॉट 12। आप इसको एग्जिट कर दो, इसको भी एग्जिट कर दो। आप कॉन्फिग मैप में लेवल्स को चेंज कर दो, 100 कर दो। 100 कर दिया। अब kubectl अप्लाई -f config map, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब आप करो अगेन kubectl exec it और यहाँ पे echo levels। ओके, सो आई थिंक यू हैव टू रीस्टार्ट योर पॉड। आपको पॉड भी अगेन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो बट बेसिकली आपने एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया। आप देखो, इसको फिर से पॉड को भी रीस्टार्ट कर दो, नहीं होगा। आपको मैक्स में भी चेंज करना होगा। नहीं, मैक्स नहीं चेंज करना होगा। क्यों पता है, क्योंकि मैक्स मैंने डाला ही नहीं है। मैंने मैक्स को अपने उसमें डाला ही नहीं है। मुझे बस पॉड जब क्रिएट करूंगा ना मैं, तो डेवऑप्स डेमो पॉड जब मैं क्रिएट करूंगा, बस उसमें अपडेट हो जाएगा। ओके, जनरली पता है इट्स यूज्ड विद डिप्लॉयमेंट, बट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिग मैप वो क्या होता है, आपने वेरिएबल्स बनाए एंड वो वेरिएबल्स को आप पॉड्स के अंदर एग्जीक्यूट करा रहे हो, फिर एक्सेस करा रहे हो। एंड इट्स एज सिंपल एज आप ये भी बना सकते हो। आपका एक एनवायरमेंट वेरिएबल ये, चलो एक और। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अनदर एनवायरमेंट वेरिएबल यूआई प्रॉपर्टीज फाइल नेम, जो आप कॉन्फिग मैप से ले रहे हो और यूआई प्रॉपर्टीज फाइल नेम से आपकी की बना रहे हो। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो इसको भी डाल के देखते हैं अपने पॉड में। ओके, इसको भी अपने पॉड में डाल के देखते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग, कैट कॉन्फिग मैप, देख लो इसमें, देख लो नाम क्या है। तो लेवल डॉट प्रॉपर्टीज इज द न्यू वेरिएबल जो हमें डालना है उधर। तो vim डेवऑप्स डेमो का पॉड जो है, उसमें हमें क्या बनाना है, एक नया एनवायरमेंट वेरिएबल बनाना है। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि मैं नया एनवायरमेंट वेरिएबल क्यों बना रहा हूं? Why am I making a new environment variable? Can anyone tell कि मैं नया क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मेरा कॉन्फिग मैप और मेरे पॉड के बीच में एक अग्रीमेंट साइन करा रहा हूं कि ये जो एनवायरमेंट नेम है ना, उसका नाम होना चाहिए लेट्स से लेवल्स प्रॉपर्टी। इसका नाम लेवल्स प्रॉपर्टीज टू रेफरेंस की विद वैल्यू एग्जैक्टली कर दो। एंड इसका जो वैल्यू फ्रॉम आएगा वो कहां से आएगा, कॉन्फिग मैप के की रेफरेंस से आएगा। ओके, कॉन्फिग मैप के की रेफरेंस से आएगा। कॉन्फिग मैप का नाम क्या है, कॉन्फिग मैप का नाम है मेरा ये अंदर आएगा। ओके, कॉन्फिग मैप का नाम है मेरा डेवऑप्स डेमो। ओके, की का नाम क्या है मेरा, की का नाम है मेरा लेवल्स डॉट प्रॉपर्टीज। अब मैंने क्या किया है, लेवल्स डॉट प्रॉपर्टीज भले ही मेरे की का नाम है, बट मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम क्या डाला है, लेवल्स अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज, वो भी अपर केस में। लेवल्स अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज वो भी अपर केस में। गॉट इट?
अब ये करने के बाद escape:wq एंटर, और मैं ये DevOps का पॉड, क्या हो गया इसको अभी, द पॉड इज इनवैलिड स्पेक, क्या हो गया, कुछ तो इसमें वो कर दिया होगा मैंने। Okay, let's try to troubleshoot this. The pod DevOps demo is invalid. Spec forbidden. Pod update may not change fields other than spec container image. Oh, तो अगर आपको pod update करना होता है, so basically आप क्या क्या update कर सकते हो? You can update the container का image. You can update the containers deadline second toleration. आप उसके variables को नहीं update कर सकते हो. So in that case, what you have to do? You have to create a new pod. Okay, आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, न्यू pod बना देना। So in that case what you can easily do, pod new कर दो इसको, that will basically create a new pod and just apply. See, DevOps pod new created. अब आपका जो DevOps pod new है उसके अंदर आप जा सकते हो। Okay, so the error was कि मैं जो रनिंग पॉड है ना उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को नहीं ऐड कर सकता। मैं इमेज को चेंज कर सकता हूँ, इधर उधर चीजें कर सकता हूँ, बट कुछ कुछ चीजें मैं नहीं ऐड कर सकता। कॉन्फ़िग मैप में चेंज करना होगा, नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िग मैप अपनी बन चुकी है, अब वो भूल जाओ, कॉन्फ़िग मैप इज डन। अब क्यूब ctl exec it मेरा DevOps डेमो पॉड नया, जिसमें मैं /bin sh यूज करूंगा। क्या हो गया, डेमो कंटेनर क्यूब ctl get pods चल तो रहा है। ओ क्रिएट कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन एरर। ओ सो जब भी आपका ये क्रिएट कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन एरर आएगा, इट हैज सिंपल मीनिंग कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, आपने कुछ तो इसमें गड़बड़ किया। तो आप ये कर लो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ गड़बड़ कैन यू डू हियर। कॉन्फ़िग मैप की नेम, क्या क्या हो सकता है इसमें गड़बड़्स, वैल्यू फ्रॉम की नेम की। Okay, this looks good to me. This looks good to me. Let's see. So basically आपने कुछ तो यहाँ पे छोटा मोटा रह गया होगा। This is correct. Config map key ref. I think this is correct. Let's try to remove this. Let's try to remove this कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओह, दो कंटेनर के नाम सेम क्यों रख दिए मैंने। न्यू, so basically my container name was also same. So let's try to make it again. क्या कर दिया मैंने अभी, oh again मैंने कंटेनर का नाम फिर से चेंज। so basically whenever you make changes anything other than image, that will have a issue. so again नया बनाओ, new। जनरली प्रोडक्शन में हम लोग ये करते नहीं है, इट्स जस्ट वेरी वेरी सिंपल। ये मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि कैसे वैल्यूज पहुंचती उधर। ओके, लेट्स क्रिएट अप्लाई kubectl get pods config error. So let's kubectl, let's delete pods. Okay, let's try deleting the pods. I think कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन की ही इशू आ रही है भैया। वाइड ओपन करके, वाइड ओपन में आईपी आता है, तो आईपी इसका एलोकेट ही नहीं हुआ होगा बिकॉज कंटेनर रनिंग ही नहीं है।
Okay, it's taking some time to delete. Generally it doesn't take that time, पता नहीं क्यों. I think that instance वो शायद slow हो गया होगा. Okay, apply, get pods, create container मैंने पक्का कुछ ना ये गड़बड़ किया है. क्या नाम है इसका जो वो रहता है ना YML, पक्का ये YML की गड़बड़ है. विम डेमो डेवऑप्स पॉड, तो ये जो पक्का है ना YML की ही गड़बड़ है. आई एम प्रिटी श्योर. कोई छोटा सा किसी को दिख रहा है कोई YML की गड़बड़? Why can't I see कोई गड़बड़? किसी और को दिख नहीं रहा. Whenever the configuration, यही था लॉग, यही था. YAML syntax चेक करें ऑनलाइन. गुड आइडिया, वेरी गुड. चेक YAML ऑनलाइन. जनरली लोग क्या करते हैं पता है, इस पे डालते हैं. क्या नाम है, कहाँ पे, लाइन 20 कहाँ, तो 2 बार क्यों कर दिया? ओ ये अपने आप 2 बार आ रहा है. ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड. तो वैलिड YAML है, तो वैलिड बोल दिया इसने तो. चलो कोई बात नहीं, वी कैन यूज दिस YAML एंड इसके अंदर वी कैन डू द एडिट्स. ये YAML यूज कर सकते हैं एंड इसी में हम लोग एडिट कर देंगे. दैट्स व्हाई जनरली आई ना प्रेफर कॉपिंग. खुद से लिखने में ना इट मोस्टली कॉजेज सम काइंड ऑफ पेन. तो RM DevOps demo VI my video accessible? Lost your connectivity. हाँ, so there was some connectivity issue. Okay, फिर से आता है. Okay, there was some kind of internet thing. Okay, so what were we doing? We were basically creating a new pod. So cd config में हम लोग नया pod बनाने वाले थे. vim demo pod .yaml. ओके, एंटर. और इस बार हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी कॉपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, हम लोग ये कॉपी कर लेंगे. ओके, नाउ द प्रॉपर्टी, द की वाज लेवल डॉट प्रॉपर्टी. ओके, गेम डेमो की जगह डेवऑप्स डेमो था हमारे उसका नाम. ये इट्स फाइन. लेवल्स था ये. So what I'm doing, I'm just using the keys from my config map. Levels, or this again would be my DevOps demo, and let's keep it, okay, let's keep it levels. EVELS. Rest, everything looks good. Escape : WQ, enter. Cube CTL apply -F.
demo, config map demo pod created, kubectl get pods, create container config error. Okay, EC2 इश्यू नहीं है, EC2 इश्यू नहीं है. I'll tell you, मुझे लग रहा है ना जो इश्यू है it's basically kubectl delete. I'll tell you what is the issue. I think the dot in the value is the issue. Okay, so ये जो dot है ना, I think that dot is the issue. I have a strong feeling कि जो dot है, dot is the issue. So cat config map level dot properties ये है ना, ये this is the issue. तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको ना फाइल चाहिए होती है. सी दिस, अगर आपको एक फाइल को एक्सेस करना है, सो यू नीड अ वॉल्यूम. ओके, सो यू नीड अ वॉल्यूम टू एक्सेस अ फाइल. ओके, सो अगर आपको एक की वैल्यू एक्सेस करना है तो आप इन्वायरमेंट से कर सकते हो. ओके, आपको की वैल्यू करना है तो आप इन्वायरमेंट से कर सकते हो, बट इन केस यू नीड टू एक्सेस अ फाइल विच इज डॉट प्रॉपर्टीज, तो आपको एक वॉल्यूम लगता है. ओके, गेटिंग इट? लेवल्स के बाद स्पेस है क्या डॉट से पहले? नहीं नहीं नहीं, आई हैव गॉट दिस. ये मुझे आया था, पहले भी आया था. सो आई टेल यू इसको फिक्स कैसे करते हैं ये भी बताता हूं मैं. इशू क्या है? दिस लेवल डॉट प्रॉपर्टीज, ये दिस इज अ फाइल, ये ना एक फाइल है. दिस इज नॉट अ इन्वायरमेंट वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? की वैल्यू होता है. तो इफ आई कीप लेवल्स 100 लेवल प्रॉपर्टीज फाइल नेम लॉल डॉट प्रॉपर्टीज, ये अगर मैं करूँ ना चल जाएगा. सी आई शो यू. अभी लेवल्स प्रॉपर्टीज फाइल नेम करूंगा ना, अभी चल जाएगा वो. सो मैं विम करूंगा. अरे क्या है इसको? ओके, तो ये जो सेकंड वाला है ना, जिसमें मैंने की नेम लेवल्स डॉट प्रॉपर्टीज किया था, अभी देखो इसको मैं चलाता हूँ. तो इसको अगर मैं लेवल्स प्रॉपर्टीज फाइल नेम करूंगा विच इज अ की वैल्यू पेयर, तो चल जाएगा. सो escape :wq enter, and if I apply okay kubectl delete get pods, तो मैं अब क्या करूंगा? इसको डिलीट करने का कोशिश करूंगा. kubectl delete pods, क्या हो गया? kubectl delete pods deleted. अब मैं फिर से क्रिएट करता हूं. क्रिएटेड. अब मैं क्या कर रहा हूं? kubectl get pods रनिंग. ये क्यों हो रहा था पता है? बिकॉज मैं अपने एनवायरमेंट वेरिएबल को फाइल दे रहा था, जो कि बहुत गलत बात है. एनवायरमेंट वेरिएबल को सिर्फ वेरिएबल नेम्स ही देने चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द इशू? कोई और इशू नहीं था. बेसिकली लेवल्स डॉट प्रॉपर्टीज जो हम उसको दे रहे थे was not a variable name, was a file variable. Okay, so in case you want to give a file, you need to give a volume. तो अगर मुझे एक फाइल देनी है तो मुझे वॉल्यूम. आई थिंक अभी चेतन हैप्पी होंगे, उनको कुछ तो एक ट्रबल शूट करने के लिए चाहिए था. ओके, सो अगर आपको फाइल देनी है, कॉन्फिग मैप से एक फाइल देनी है, देन यू हैव टू यूज वॉल्यूम्स. ओके, आपको वॉल्यूम करना है, तो एक वॉल्यूम माउंट लगा दो. ओके, सिंपल सा वॉल्यूम माउंट लगा दो. इसमें परसिस्टेंट वॉल्यूम अटैच करना होगा. एग्जैक्टली, बट मैं बिना परसिस्टेंट वॉल्यूम के भी कर सकता हूँ. परसिस्टेंट वॉल्यूम आपको कब चाहिए होता है? जब आपको कुछ चीज एक पूरे कंटेनर को, पूरे डिप्लॉयमेंट को रखनी है. मैं नॉर्मल वॉल्यूम अपने सिस्टम से भी अटैच करा सकता हूँ. सो इफ आई गो टू डेमो पॉड, यार ये क्यों आ रहा है इसको?
ओके, इफ आई गो टू माई डेमो पॉड और यहां पे आई विल अटैच अ वॉल्यूम माउंट, ठीक है, मैं एक वॉल्यूम माउंट दे दूंगा। वॉल्यूम माउंट क्या करता है? वॉल्यूम माउंट बेसिकली आपका एनवायरमेंट के बाहर आता है। ठीक, सो आपका एनवायरमेंट इधर है ना, सो योर वॉल्यूम माउंट शुड कम आउटसाइड द एनवायरमेंट, शुड कम आउटसाइड एनवायरमेंट, और ये नेम अंदर जाएगा, माउंट पाथ अंदर जाएगा, रीड ओनली अंदर जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम माउंट आपका हो चुका है। वॉल्यूम माउंट क्या होता है? वॉल्यूम माउंट इज बेसिकली जो आपका पॉड के अंदर होगा। ओके, वॉल्यूम माउंट इज पॉड के अंदर। सो ऐसे सोचो, एनीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड स्पेक विल गो इनसाइड द पॉड, एनीथिंग रिटन इनसाइड स्पेक विल गो इनसाइड द पॉड। मतलब पॉड के अंदर एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? पॉड के अंदर एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम क्या होगा? कॉन्फिग, दैट्स करेक्ट। अब वो कॉन्फिग मुझे अपने सिस्टम से अटैच करनी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम अटैचिंग। ठीक है, वो मैं कैसे करूंगा? इट्स वेरी सिंपल, आई जस्ट यूज द वॉल्यूम्स। ओके, आई जस्ट यूज द वॉल्यूम्स। ओके, वॉल्यूम्स। अब इस वॉल्यूम्स को मैं क्या दूंगा? अपना कॉन्फिग मैप दे दूंगा। इस वॉल्यूम को मैं अपना कॉन्फिग मैप दे दूंगा। गेम डेमो की जगह क्या आएगा? डेवऑप्स डेमो। की की जगह क्या आएगा? लेवल प्रॉपर्टीज। पाथ की जगह लेवल प्रॉपर्टीज। ये किस किस को समझा? ये स्पेक के भी बाहर आता है, ये स्पेक के बाहर आता है, ये स्पेक के बाहर आता है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली आपके सिस्टम का एक वॉल्यूम अटैच कराना है, तो ये आपका स्पेक के बाहर आएगा। इफ यू चेक हियर एज वेल, तो इट कम्स आउटसाइड योर स्पेक। ओके, ओए, थिंक इट्स इनसाइड। आपको सिस्टम के बाहर ही देना है इसको। लेट्स चेक। कॉन्फिग मैप अंदर आएगा, आइटम्स अंदर आएंगे, की के अंदर। आई थिंक नाउ दिस इज बेटर। let's try, let's test it out. But how many volume concept going above head, please repeat. चलो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सी, अरे श्रीपद आपने डॉकर ही नहीं पढ़ा है, आपको कैसे समझाऊंगा मैं? सी, द थिंग इज, any virtual machine, it can be a Docker container or it can be a Kubernetes pod, needs some kind of RAM, some kind of hard disk. अभी कहां से लाएगा हार्ड डिस्क? कहां से लाएगा रैम? लेट्स से हार्ड डिस्क क्या होता है? आपका डिस्क, जो आपकी हार्ड डिस्क जहां पे आप मूवी स्टोर करते हो, फाइल स्टोर करते हो, समथिंग। तो ये आपका पीसी है और ये आपका वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन मतलब आपका पॉड है या फिर आपका कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर आपको फाइल स्टोर करानी है। लेट्स से आपका कंटेनर डिलीट हो गया तो फाइल भी डिलीट हो जाएगी। तो आपका पीसी जो होता है ना, आपका पर्सनल कंप्यूटर या फिर आपका हार्ड डिस्क, इसके अंदर एक फोल्डर बनता है। लेट्स से कुछ भी फोल्डर, लेट्स से हाय हाय MKDIR हेलो या फिर फाइल्स नाम का फोल्डर बना। ये फोल्डर और ये फोल्डर परसिस्ट होना चाहिए, मतलब इनकेस ये डिलीट भी हो जाए तो इस फोल्डर में से सामान उठा के इसमें वापस आ जाए। दैट इज नोन एज वॉल्यूम। आप अपने कंटेनर को या फिर एक पॉड को एक हार्ड डिस्क दे देते हो, दैट इज बेसिकली नोन एज वॉल्यूम। ओके, यही है, दैट्स ऑल। तो आपने क्या किया? एक वॉल्यूम बनाया जिसका नाम दिया कॉन्फिग। आपने एक वॉल्यूम बनाया जिसका नाम दिया कॉन्फिग। वो वॉल्यूम डेवऑप्स डेमो नाम के कॉन्फिग मैप से चीजें उठाएगा। क्या उठाएगा? लेवल्स डॉट प्रॉपर्टीज उठाएगा। ठीक है, लेवल्स डॉट प्रॉपर्टीज याद है? किस किस को याद है लेवल्स डॉट प्रॉपर्टीज? वी हैड गिवन सम प्रॉपर्टीज। ओके, अब ये जो कॉन्फिग है ये मुझे पॉड के अंदर डालना है वॉल्यूम माउंट्स में, और वो जो वैल्यू उठाएगा उसका पाथ होगा /config से। मतलब अपने पॉड के अंदर ये जो था ना, ये पॉड के अंदर का जो पाथ होगा इसका नाम होगा कॉन्फिग। जो आपने वॉल्यूम अटैच किया उसका नाम होगा कॉन्फिग। ये कैसे किया? ये ऐसे किया, ये ऐसे किया। ओके,
वॉल्यूम हमारा कंटेनर के बाहर भी क्रिएट होगा. लेट्स चेक इट आउट. ओके, वॉल्यूम कंटेनर के बाहर नहीं क्रिएट होगा. वॉल्यूम कहां से उठा रहा है बताइए? ये वॉल्यूम उठा रहा है अपने कॉन्फिग मैप से. चलो लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस. ओके, लेट्स अप्लाई दिस. क्यूब ctl apply demo pod. Okay, again आपका pod basically already created है, so you have to cube ctl get pods करके you have to delete the pod. Okay, demo pod को cube ctl delete pods. demo pod को मैंने delete किया. ये क्यों? क्योंकि मुझे नया pod बनाना है. अभी यहां तक किस किस को क्लियर हो रहा है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? हम लोग बस एक कुछ वेरिएबल्स को हमारे पॉड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक की वैल्यू पेयर में होती है और फाइल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. फाइल वाला अभी कर रहे हैं. की वैल्यू पेयर आई थिंक इससे पहले हो चुका था. की वैल्यू पेयर आई थिंक यू हैव गुड आइडिया. env के अंदर लिखते हैं नेम. आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन. यस, क्लियर, बढ़िया. ओके, सो योर कॉन्फिग मैप डेमो पॉड इज रेडी. अभी देखो इसके अंदर का मजा. क्यूब ctl exec -it आपका कॉन्फिग मैप ये, और फिर मैं इसके अंदर bin sh कर रहा हूं और पॉड के अंदर घुस चुका हूं. अगर मैं यहाँ पे ls करूंगा तो यू शुड सी अ फोल्डर जिसका नाम है क्या? What is the name of that folder? Config. ये कहां से आया? अच्छा, जहां से भी आया होगा. What can we expect इसके अंदर क्या हो? Can anyone tell me इसके अंदर क्या हो? हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम नहीं, गर्वित इज करेक्ट. द फाइल. सो cd config अगर मैं करूंगा और ls करूंगा you will get levels.properties. अगर मैं cat levels.properties करूंगा you will get level type easy medium hard, level maximum 13. समझ में आया कि मैंने कैसे एक कॉन्फिग मैप को अपने पॉड के अंदर डाला? अगर मैं इसको env भी प्रिंट करा दूंगा या फिर echo $levels भी प्रिंट करा दूंगा. लेवल आई थिंक मैंने बड़ा किया था तो 100 आ गया. तो डिड यू सी द डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे की वैल्यू पेयर के कॉन्फिग मैप को भी आप पॉड तक पहुंचा सकते हो, फाइल के कॉन्फिग मैप को भी पॉड तक पहुंचा सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट अ आइडिया ऑफ दिस? आई नो डिफिकल्ट है बट डेवऑप्स मैंने कब कहा कि चीजें डिफिकल्ट नहीं होने वाली है? How many of you got the idea कि कैसे एक 100 कौन सी वैल्यू है? अरे यार, शॉर्ट टर्म मेमोरी. कैट कॉन्फिग डेमो करके देखो ना, हमने लेवल्स को 100 किया था, लेवल प्रॉपर्टीज को ये किया था. गेटिंग इट? ये आपका कॉन्फिग मैप है. अगर मैं एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 100 पॉड्स बना दूंगा. ओके, आई विल मेक 100 पॉड्स. 100 pods will get these values. How many of you got the idea कि कैसे 100 pods को ये values मिलेंगी? How many of you got idea कि 100 pods को ये value कैसे मिलेगी? आ गया? Got it? एक बार चाहो तो env from से. बढ़िया. So cat देखो ऐसे तो pods बनाना इट्स. देखो अभी कौन बोल रहा था? सो देयर वाज वन क्वेश्चन, किसी ने तो कमेंट में पूछा था, हाउ मच कोडिंग इज रिक्वायर्ड इन डेवऑप्स? ये देखो, तो यू नो यू शुड नो. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आइडिया ऑफ कॉन्फिग मैप्स? इससे ज्यादा नहीं है कॉन्फिग मैप्स में. यस, सब लोग कॉन्फिग मैप बना लेंगे और
इसको डिप्लॉयमेंट फाइल में भी यूज कर लेंगे। अमेजिंग अमेजिंग, सुपर। अच्छा चलो, ये तो था आपका कॉन्फिग मैप्स, जो आई हैड दिस कोडिंग डाउट, गॉट आइडिया ऑफ कॉन्फिग, बस थोड़ा हैंड्स ऑन चाहिए, वो तो दैट्स रिक्वायर्ड। तो आप नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे आप हैंड्स ऑन करते हो, सैटरडे संडे यू गेट द आइडिया। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, ये जो डेटा मैंने हर एक नोड पे भेजा, हर एक पॉड में भेजा, आज की फाइल शेयर कर दो गिटहब, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट फॉर श्योर। ये जो मैंने पूरा डेटा भेजा हर एक पॉड पे, वाज इट कॉन्फिडेंशियल डेटा? नो। व्हाट इफ आई हैव कॉन्फिडेंशियल डेटा? लेट्स से मेरे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि ये जो डेटा है ना, ये तो मतलब जैसे मैंने कॉन्फिग मैप में लेवल 100 डाला था, वो तो देना ही नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू गिव। तो मैं क्या करूंगा, जनरली what I do is I create a hash. Let's say मेरा, please also share how to you private docker image for pod. Okay, I'll do that. एक छोटा सा कीवर्ड चेंज करना होता है बस, I'll do that. Okay, let's talk about secrets, कि secrets क्या होता है. Okay, let's, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास echo -n test@123, ये जो test@123 है, ये मेरा पासवर्ड है। अब कितने लोगों को मेरा पासवर्ड पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो माई पासवर्ड test@123? आई थिंक सबको ही पता है, दैट्स, सबको पता है। अब मैं इसको बेस 64 में एनकोड करने वाला हूं, ये मेरा पासवर्ड आ गया। मतलब दिस इज अ सीक्रेट पासवर्ड। ये भी ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग पे है, सबको पता है, बट इज इट मोर सेफ और इज इट सेफर देन test@123? क्यों? क्योंकि एनकोडेड है, बेस 64 एनकोडेड है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आइडिया? हाँ, फुल्ली सेफ नहीं है, बट एक लेवल तो ऊपर गया। test@123 को मैंने बेस 64 एनकोड कर दिया और ये हो गया, ठीक है। हाँ, इसको आप डिकोड कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डिकोड दिस। ये पासवर्ड मुझे कहीं पे तो स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है? मुझे कॉन्फिग मैप में स्टोर करूंगा। तो बेसिकली कॉन्फिग मैप क्या करता है, एज इट इज डेटा को भेज देता है। कॉन्फिग मैप क्या होता है, लेवल्स इक्वल टू 12, तो बिना देखे लेवल्स 12 है भाई, ले जाओ। सीक्रेट्स क्या करता है, इसको देखता है कि यार ये किस चीज में एनकोडेड है, ये बेस 64 में एनकोडेड है, तो जब भी ये पॉड के अंदर भेजेगा ना, डिकोड करके भेजेगा, जिससे कि कभी भी आपका डेटा एक्सपोज नहीं होगा। मतलब वहां पे मुझे test@123 नहीं भेजना पड़ेगा पासवर्ड में, मैं ये भेजूंगा ना, तो सीक्रेट्स अपने आप उसको डिकोड कर देगा। कैसे करेगा? लेट्स सी बाय एन एग्जांपल ऑफ MySQL. ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल ऑफ MySQL। मुझे क्या करना है, मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। ओके, आई हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट फॉर यू ऑल, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक MySQL का पॉड बनाने वाला हूं, MySQL की डिप्लॉयमेंट भी बनाने वाला हूं, MySQL की सर्विस भी बनाने वाला हूं। ओके, आई विल बी क्रिएटिंग MySQL की सर्विस भी, डिप्लॉयमेंट भी, सब कुछ ऐसा बनाने वाला हूं कि मुझे अपना जो test@123 है ना, वो पास ही ना करना पड़े। I have to do something like that. So secret.yaml, this is the important thing. तो cat secrets.yaml। अब यहां पे मैंने क्या डाला हुआ है, काइंड सीक्रेट, मेटाडेटा नेम MySQL का सीक्रेट्स, टाइप ओपेक। ओके, ओपेक, डेटा रूट पासवर्ड, ये कोई तो मेरा पासवर्ड है जिसको मैं चेंज करके, ओके, इसको चेंज करके मैं क्या डालने वाला हूं, मेरा ये वाला, कहाँ गया मेरा पासवर्ड? अरे यार, मेरा पासवर्ड कहाँ चला गया? दिस इज माय पासवर्ड। तो ये पासवर्ड एनक्रिप्टेड है,
एक्सपोज नहीं है, अभी भी एक्सपोज नहीं है। ओके अब जिसको पता होगा वो कह रहे डिक्रिप्ट कर लेगा, बट स्टिल इट इज नॉट एक्सपोज्ड, एज इट इज एक्सपोज नहीं है। एस्केप कोलन WQ एंटर। कैट secrets.yaml, मैंने एक सीक्रेट फाइल बनाई है। ये सीक्रेट फाइल कैसे बनाई? जैसे मैंने कॉन्फिग मैप बनाया था। कॉन्फिग मैप में क्या था? व्हाट इज दैट की, जिसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर डालते थे, वो क्या था? डेटा। आपको पता है, आप समझ पा रहे हो ना कि व्हाट इज दिस सेशन ऑल अबाउट? हाउ टू मेक श्योर कि आपके पॉड्स को डेटा पहुंच रहा है। अगर आपको नॉट सो कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना है तो यू यूज कॉन्फिग मैप्स। अगर आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना है तो आपको इसका काइंड करना पड़ेगा सीक्रेट। समझ में आया? इट्स द मोस्ट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कुबरनेटीज, इसलिए आप सब लोग शांत हो। अगर मैं बोल देता पहले कि सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है तो सब निकल चुके होते मैच देखने। बट आप यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको बहुत सारे डेवलपर्स बोलेंगे कि ये कीज है, इसको सारे पॉड्स तक पहुंचाओ। अगर वो कीज सेफ कॉन्फिडेंशियल होगी तो यू विल बी यूजिंग सीक्रेट्स, और डेटा में आ जाएगा ये आपकी की, ये आपकी वैल्यू। किस किस को समझ में आया? और अगर आपको नॉर्मल वेरिएबल्स यूज करना है, यू कैन यूज कॉन्फिग मैप्स। गेटिंग? बढ़िया। अभी मेरा सीक्रेट बन गया। आई विल अप्लाई क्यूब ctl अप्लाई -f secrets.yaml secret MySQL secret is created। ये मेरा सीक्रेट बन चुका है। क्या ये सीक्रेट मेरे किसी पॉड तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरा पॉड बना ही नहीं है। तो मैं एक deployment.yaml बना लेता हूं। तो cat deployment.yaml, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? इसमें मैं एक डिप्लॉयमेंट बना रहा हूं जो MySQL की डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, मैं एक MySQL का कंटेनर बनाने वाला हूं। आई हैव टू यूज MySQL। क्या मेरे सिस्टम में MySQL है? क्या मेरे पास सिस्टम में MySQL नहीं है? नहीं है। MySQL दो टाइप के होते हैं वैसे। MySQL सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और तभी हम लोग क्वेरीज लिख पाते हैं। यू ऑल नो दैट राइट? MySQL client gives the request to connect to server। ये हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं MySQL का सर्वर। ओके, एवरीवन ऑन द सेम पेज राइट? लेबल दिया मैंने MySQL। ओके, सो मेरे डिप्लॉयमेंट का लेबल है MySQL। रेप्लिकास एक ही रेप्लिका है। ओके, जस्ट वन रेप्लिका ऑफ एक MySQL कंटेनर बनाना है मुझे। स्पेक मतलब अगर मैं डिप्लॉयमेंट में स्पेक डाल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? व्हाट आई एम क्रिएटिंग? कंटेनर। कंटेनर को क्या बोलते हैं कुबरनेटीज में? pods। So I'm creating a pod of MySQL with image as MySQL 5.7। Okay, I'm just creating a MySQL 5.7 का image जिसमें कंटेनर का पोर्ट है 3306। ओके, कंटेनर का पोर्ट है 3306। ये पार्ट किस किस को समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पार्ट? इट्स जस्ट अ pod creation for MySQL। गुड। अभी वॉल्यूम माउंट्स क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें MySQL की फाइल्स को स्टोर करना है। सो माउंट पाथ var lib MySQL। ओके, ये एक वॉल्यूम पाथ है। सब पाथ MySQL नेम, MySQL का डेटा। ओके, टेम्पलेट में एक और लेबल किसके सिलेक्टर में मैच लेबल्स किया था? कहाँ पे? टेम्पलेट में एक और लेबल किस लिए सिलेक्टर में मैच लेबल? कहाँ पे? दिस इज जस्ट द मेटा डेटा जो आपको करना ही है। आप बस लेबल्स एंड सिलेक्टर दोनों चाहिए ना आपको। अभी कंटेनर ये आपका हो गया। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अच्छा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम वेयर? वैल्यू फ्रॉम नहीं, कॉन्फिग मैप से क्यों आएगी? कॉन्फिग मैप इज फॉर ऐसा डेटा जो आप एक्सपोज करना चाहते हो। वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम सीक्रेट की रेफरेंस।
प्रियंका इज राइट, सीक्रेट की रेफरेंस से आ रही है, जिसका सीक्रेट की जो हमारी सीक्रेट जो फाइल है, फाइल का नाम है MySQL सीक्रेट्स. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट कि फाइल का नाम है MySQL सीक्रेट्स, जो हमने इससे पहले सीक्रेट्स बनाया था. की क्या है? रूट पासवर्ड. रूट पासवर्ड में वैल्यू क्या थी? test@123 थी क्या? test@123 का हैश था. So I am not actually passing the base64 value. Okay, I'm not actually passing the base64. I'm just passing the key. And I'm saying कि भैया environment variable MySQL का जो root password होता है ना, वो आप secret key से ले लो, और की का नाम है root password, और वॉल्यूम है MySQL data. अब एक होता है आप अपने सिस्टम की वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, एक और होता है आप persistent वॉल्यूम क्लेम भी कर सकते हो. persistent वॉल्यूम क्लेम क्या होता है? एक और डॉकर कंटेनर बनाता है, कुबरनेटिस एक और डॉकर कंटेनर बनाता है जिसका टाइप होता है persistent वॉल्यूम क्लेम. ठीक है, तो कैट persistent वॉल्यूम क्लेम ये क्या करता है? आपका एक छोटा कंटेनर बना देगा जिसके अंदर 1 GB की आपकी, ये सेम ही रहता है, ये भी आपके सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, जस्ट दैट उस चीज के लिए अलग कंटेनर होता है, और आपका 1 GB का एलोकेट कर देता है साइज. ओके, इसका बस टाइप क्या रहता है? persistent वॉल्यूम क्लेम. जब भी आपको वॉल्यूम अटैच करनी है अपने पॉड को, दो टाइप से अटैच कर सकते हो. एक तो डायरेक्टली वॉल्यूम को सिस्टम की वॉल्यूम से माउंट कर दो /config/files से, या फिर persistent वॉल्यूम क्लेम टाइप का कंटेनर बना दो. persistent वॉल्यूम क्लेम टाइप का एक बना दो. ठीक है, और यही persistent वॉल्यूम क्लेम हम लोग यूज करेंगे अपने डिप्लॉयमेंट में. तो वापस चलते हैं डिप्लॉयमेंट में. cat डिप्लॉयमेंट, यस दिस इज सेपरेट ऑब्जेक्ट, ये अलग ऑब्जेक्ट है. YML फाइल क्रिएट्स अ पॉड, राइट? हर जरूरत नहीं है, एक YML फाइल एक पॉड भी बना सकती है, एक YML फाइल सर्विस भी बना सकती है, एक YML फाइल आपका पॉड डिप्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें, सीक्रेट्स भी बना सकती है, कॉन्फिग मैप भी बना सकती है. अभी समझ में आया कि ये वॉल्यूम्स persistent वॉल्यूम क्लेम कहां से ले रहा है? MySQL डेटा डिस्क से ले रहा है. गेटिंग इट? कि ये MySQL डेटा जो वॉल्यूम ले रहा है वो कहां से ले रहा है? persistent वॉल्यूम क्लेम से ले रहा है, जो कि पहले से बनी हुई है. अरे वही तो बताया मैंने, MySQL डेटा डिस्क क्या है? इट्स अ persistent वॉल्यूम क्लेम. persistent वॉल्यूम क्लेम क्या करता है? वो इंटरनली एक चीज एलोकेट कर देता है, अपने हार्ड डिस्क से उठा के इंटरनली एलोकेट कर देता है. ओके, ये कहाँ है? कैट persistent वॉल्यूम क्लेम में यहाँ है. ये देखो नेम, देखो MySQL डेटा डिस्क. हाँ, वो नेमिंग था, माउंट पाथ persistent वॉल्यूम वाले कंटेनर में होगा. करेक्ट करेक्ट, ये MySQL डेटा डिस्क इज द नेम फॉर persistent वॉल्यूम क्लेम. सो कैट डिप्लॉयमेंट. अच्छा, मैं डिप्लॉयमेंट पहले अप्लाई करूंगा या persistent वॉल्यूम क्लेम पहले अप्लाई करूंगा? kubectl अप्लाई जब करूँ, हाँ कर. सो kubectl अप्लाई -f persistent वॉल्यूम क्लेम. persistent वॉल्यूम क्लेम MySQL डेटा अनचेंज, मतलब मैंने पहले से ही बना के रखा था. ठीक, तो इफ यू वांट टू चेक आप ये कर सकते हो, एंड यू कैन kubectl. हाँ, ये इट्स काइंड ऑफ बैकअप. ओके, यस, इट्स नॉट बैकअप एग्जैक्टली, इट्स अ वॉल्यूम. ठीक है, kubectl गेट persistent वॉल्यूम क्लेम्स. तो देखो ये है MySQL डेटा डिस्क. इसको बंद कर देते, तो kubectl, अरे रे, डिलीट persistent वॉल्यूम क्लेम. persistent वॉल्यूम क्लेम डिलीटेड. अब मैं फिर से बना देता हूँ, अप्लाई क्रिएटेड. ओके, ये लास्ट टाइम अनचेंज आया था, मतलब उसमें शायद पुराना वाला कुछ कीज रह गई होंगी. ओके, मैंने वॉल्यूम बना दिया, मैंने सीक्रेट्स बना दिया है. बचा क्या? क्या बचा?
बनाना, the actual deployment. So kubectl apply -f deployment.yaml MySQL के deployment is created, which means if I do kubectl get pods, I will have MySQL का container running. MySQL का container running. किस किस को समझाए ये MySQL का कंटेनर रनिंग कैसे किया? मैंने डिप्लॉयमेंट फाइल के थ्रू रन किया। ये रन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको जो इन्वायरमेंट वेरिएबल था वो मिल चुका था। किस किस को डॉकर स्वॉर्म याद है जहां पे हमारा MySQL का कंटेनर रन ही नहीं हुआ था? किस किस को याद है? वो क्यों रन नहीं हुआ था? क्योंकि हमने रूट पासवर्ड नहीं दिया था। इस केस में पासवर्ड हमने test@123 जो है डायरेक्टली नहीं दिया है, एनक्रिप्ट करके दिया है, सीक्रेट्स के थ्रू दिया है, एंड दैट्स व्हाट अ डेवऑप्स इंजीनियर डज। आपको बहुत सारे सीक्रेट्स मैनेज करने होते हैं पूरे कंपनी के, पूरे प्रोजेक्ट्स के। दैट्स हाउ यू डू इट। अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है। व्हाई? कोई मुझे बता सकता है अभी भी क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि अगर मैं गेट पॉड्स -o वाइड करूंगा, क्या मैं इस आईपी एड्रेस पे 172.1.3 पे MySQL चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हमें एक सर्विस चाहिए। तो कैट सर्विस, ठीक है, मुझे एक सर्विस चाहिए। सर्विस में मैं क्या करूंगा? सर्विस में मैं एक MySQL की सर्विस बनाऊंगा, नोट टाइप की, ओके, एक्सटर्नल पी येट टू डू, ठीक है, नोट पोर्ट टाइप की सर्विस बना दूंगा, जिसमें ऐप क्या होगा मेरा? ये ऐप किससे सिलेक्ट होगा? ये लेबल किससे मैच होगा? डिप्लॉयमेंट से। एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉड की डिप्लॉयमेंट से। ओके, प्रोटोकॉल TCP मतलब कोई भी आके होस्ट नेम डालेगा, पोर्ट डालेगा, तो मेरा सर्विस, मेरा डिप्लॉयमेंट जिसके अंदर MySQL चल रहा है वो एक्सेस कर सकता है। नोड पोर्ट डाल दिया 300036, क्योंकि 30,000 की रेंज में आना चाहिए। टारगेट पोर्ट क्या है? 3306। क्यों? वाई इज द टारगेट पोर्ट 3306? क्योंकि जो हमने पॉड बनाया है, पॉड का जो MySQL है वो 3306 पे चलता है। इसको कर देते हैं अप्लाई। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आइडिया की सर्विस क्यों बनाई है? सो kubectl apply -f service.yaml service.unchanged, चलो ठीक है, सर्विस चेंज नहीं हुई है, which means kubectl get svc को हमें करना पड़ेगा डिलीट। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले थोड़ी देर पहले किया था, एंड बेसिकली जस्ट टू नो, मैं बना के 8 बजे तक दोनों नहीं खत्म कर पाता। मुझे पता था कि या तो मैं कॉन्फ़िग मैप ही खत्म कर पाऊंगा या फिर सीक्रेट्स खत्म कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी क्रिएटेड दिस। सो kubectl delete svc MySQL सर्विस को डिलीट कर दो और फिर से अप्लाई कर दो। मैं फिर से अप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं फ्रेश से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, अपडेट कर सकते थे बट अनचेंज्ड आ रहा था, विच मींस पहले की उसकी कुछ तो हैशेस पड़े होंगे। आई डिडंट वांट टू चेंज दैट। डन। kubectl गेट सर्विस, मेरी सर्विस अप है। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, मेरे डिप्लॉयमेंट अप है। kubectl गेट सीक्रेट्स, मेरे सीक्रेट्स अप है। सर्विस अप है, डिप्लॉयमेंट अप है, सीक्रेट्स अप है। लेट्स रन दिस। व्हाट इज टाइप? कहां पे टाइप? ओपेक। देखो, ट्रांसपेरेंट मतलब आप ओपनली दिखा रहे हो सबको। ओपेक मतलब यू कांट सी थ्रू, इट्स हैश्ड। जब आप हैश्ड करते हो तो आपको वहां पे हैश पास करना पड़ता है।
तो जब भी ये MySQL सीक्रेट्स MySQL डिप्लॉयमेंट के अंदर अपने वेरिएबल अपना डेटा भेजेगा वो डिक्रिप्ट करके भेजेगा। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अरे कुबरनेटीज में बहुत चीजें है कवर करने का। हाँ फिजिक्स में था ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट डाला नहीं है इन लोगों ने कुबरनेटीज में। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस मिनी क्यूब सर्विस। कौन सी सर्विस का हमें यूआरएल चाहिए? MySQL सर्विस का यूआरएल चाहिए, ठीक है। MySQL सर्विस का यूआरएल क्या है? ये है 192, ये वाला। ये आप इसमें हाइफन हाइफन यूआरएल भी डाल सकते हो, तो वो यूआरएल दे देगा। मिल गया। अभी मुझे MySQL का क्लाइंट इंस्टॉल करना है। सो उबंटू इंस्टॉल MySQL क्लाइंट। क्लाइंट क्यों चाहिए? जस्ट अ मिनट। क्लाइंट क्यों चाहिए? क्लाइंट इसलिए चाहिए क्योंकि हम किसी एक होस्ट से कनेक्ट कर पाए। तो आप MySQL क्लाइंट ऐसे भी कर सकते हो। चलो sudo apt get install, ठीक है, हो गया। ये मैं MySQL को सर्वर नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्लाइंट कर रहा हूँ। तो डॉकर से नहीं कर सकते, डॉकर से भी कर सकते हैं, बट मुझे एक्सटर्नली चलाना है ना, मुझे डॉकर से थोड़ी नहीं चलाना, मुझे एक्सटर्नली चलाना है। तभी तो हम लोगों ने वो लेके आए थे। हम ये यूआरएल क्यों लेके आए? क्योंकि मुझे एक्सटर्नली चलाना है ना। डॉकर से भी कर सकते हैं, बट फिर सर्विस का फायदा क्या? MySQL -u रूट -p फिर -h। -h क्या होता है? कोई अगर MySQL नहीं, हैश नहीं होता। कोई अगर MySQL जानता होगा तो अगर मुझे किसी भी सर्वर को कनेक्ट करना होता है MySQL के, तो -h मतलब होस्ट होता है। चेतन हैज वर्कड डे इन एंड डे आउट विद दिस। तो और हाइफन पोर्ट अगर आपको करना है तो p तो पासवर्ड है। तो अगर मुझे पोर्ट डालना है तो मैं क्या करूंगा? तो हाइफन बड़ा वाला p, कैपिटल P। एंड पोर्ट है मेरा 33, ये 6, एंटर। एंटर पासवर्ड। बताओ मैं test@123 डालूं या हैश डालूं? क्योंकि मैंने तो सीक्रेट्स को, ये तो हैश बोल रही है प्रियंका, मतलब भरोसा ही नहीं है सीक्रेट्स पे। क्योंकि मैंने सीक्रेट्स को तो हैश दिया ना, तो जो MySQL में जो पासवर्ड घुसा होगा हैश घुसा होगा। तो test@123 एंटर। मैंने शायद इसमें स्पेस नहीं डाला है। test@123 एंटर। एंड आप आ चुके हो अपने MySQL के अंदर विदाउट अपना पासवर्ड डिस्क्लोज किए। समझ में आ रहा है? जस्ट यूजिंग अ हैश, सीक्रेट, डिप्लॉयमेंट, सर्विस, कुबरनेटीज क्लस्टर, यू हैव यूज्ड MySQL। ये भी एक प्रोजेक्ट है कि आप एक MySQL को प्रोडक्शन में सेटअप कर रहे हो विथ सीक्रेट्स, विथ रेप्लिकेशन। यही अगर मैं एग्जिट कर दूं और डिप्लॉयमेंट को चेंज करके समझ में आया? किस किस को समझ में आया कि हम लोग MySQL का डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं यूजिंग कुबरनेटीज, सीक्रेट्स, सर्विस, डिप्लॉयमेंट? गुड। सो VIM डिप्लॉयमेंट्स। अब यहां पे मैं रेप्लिकास को चेंज कर दूंगा। kubectl अप्लाई, ठीक है। डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगर हो गई। kubectl गेट पोर्ट्स। 3 कंटेनर चल रहे हैं MySQL के, किसी में भी घुस जाओ, क्योंकि ये तो एक सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये कर दूंगा और test@123 कर दूंगा, अरे रे क्या हो गया? हाँ, तो आई विल गेट द सर्विस अगेन। सो मिनी क्यूब सर्विस URL
ये है ओके, बट हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आइडिया कि आप एक MySQL का पूरा डिप्लॉयमेंट कर सकते हो यूजिंग कुबरनेटिस ओनली? यस, समझ में आया? यूजिंग कुबरनेटिस सीक्रेट्स एंड योर सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट, क्लियर? कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट फ्लो में समझो, ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ फ्लो. फ्लो क्या बोलता है? आपको मास्टर समझ में आना चाहिए, नोट समझ में आना चाहिए, kubectl कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो समझ में आना चाहिए, pods, डिप्लॉयमेंट सर्विस, secrets and config maps. With this you have covered your Kubernetes. Okay, भैया इस डिप्लॉयमेंट को फ्रंट एंड के डिप्लॉयमेंट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ओके, इंग्रेस हम लोग तब करेंगे जब अपना राउट 53 होगा, वरना इंग्रेस का फायदा क्या है? इंग्रेस इज बेसिकली DNS, डोमेन नेम सर्विस, जिसका अगर आपको IP को एलोकेट करना है, तो अगर आपके पास एक एक्सटर्नल IP ही नहीं है तो आप इंग्रेस क्यों यूज करोगे? सो व्हेन राउट 53 विल बी डन, तब वी विल बी कवरिंग इंग्रेस. भैया इस डिप्लॉयमेंट को फ्रंट एंड के डिप्लॉयमेंट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इंग्रेस से. What is HPA? What is HPA? Something new. HPA Kubernetes horizontal pod auto scaling. Something new. Workload such as, I think HPA का भी कोई ऑब्जेक्ट ही बनेगा. Type resource. Okay. Till here, is everyone clear with your Kubernetes? सब लोग का Kubernetes clear हो गया है? अभी एक्सटर्नल IP आया था ना, then public can access, मतलब my question to DNS की जरूरत क्यों चाहिए? My question here is, जो 10 पॉइंट दिए वो समझ में आया क्या? मैंने DNS पढ़ाया नहीं है, पब्लिक IP इंग्रेस पढ़ाया नहीं है, तो asking questions about that doesn't make sense. सर लॉग्स कैसे पढ़ते हैं वो भी बता देना. I will. आज जितना पढ़ा है config map secret, is that clear? Do you need any kind of revision for that? Okay, superb, amazing. चलो, we'll have to do hands on, that's true. hands on के बिना तो नहीं चलने वाला चीज. मैं एक बार घर पे कॉल कर लूं. ओके, superb. let's do one thing. 8:15 पे we will be going live on YouTube. So anyone who has any doubts, कोई भी question, तो आप पूछ सकते हो. Okay.